So first I'll talk about today the nature of the right of appeal. See, right of appeal is a statutory right, and by that definition it is a substantive right. But because it is the part of procedural code as well, then it bears the element of the procedural law as well. So in a proper terminology, right of appeal is both substantive and procedural in nature. And always remember, whenever you are posed with a question that what right is a right to appeal, always write it is a statutory right. It means it needs to be expressly granted by the legislature. So unless the right to appeal is granted by the legislature to you, you cannot approach an appellate court to have the judgment overturned. So always remember that this right needs to be express. Alright, it needs to be in the statute in order for you to claim it. If the legislature has provided no provision for appeal, then it would mean that there is no right to appeal. You do not have the right to appeal from the judgment of the court if the provision has not been enacted by the legislature. That is why right of an appeal has a nature of a substantive right as well. So I must tell you that your right to go to a criminal court or any other court is an inherent right. Alright, it can be regulated by the legislature, but it need not be expressly granted, because it is implied that every citizen or every person within that territory of India has the right to approach the court. But if you want to appeal, then you need to find a statutory provision which empowers you to prefer an appeal. Otherwise, you will not have the right to appeal. So always remember that statutory provision होना बहुत ज़रूरी है. अब अपील और रिवीजन में डिफरेंस भी आपको बता दूं जो बहुत ज़रूरी है. रिवीजन तो कल आपको कंप्लीट होगा, लेकिन अभी से ही डेफिनेशन दोनों में ध्यान में रख लीजिए. अपील इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स. In effect, that entire proceedings are before the appellate authority and is the power to review the evidence subject to the statutory limitations prescribed. But in case of revision, whatever powers the revisional authority may or may not have, it has not the power to review the evidence unless the statute expressly confers that power. In other words, the legal position is that in the exercise of appellate jurisdiction, the power of the appellate court is coextensive with the original court's jurisdiction. It can do all such things that the lower court could have done in the matters of appraisal of evidence, appreciation of evidence, reaching the finding on facts. Appellate court is free to reach its own conclusion on evidence, untrammeled by any finding entered by the trial court. While revisional courts powers, on the other hand, belongs to supervisory jurisdiction. It supervises. It does not correct or reappreciate evidence. It just sees that whether you are within the limits or the confines of law while exercising your power. So revisional powers belong to supervisory jurisdiction of a superior court. So while exercising revisional powers, the court has to confine to the legality and the propriety of the findings, and also whether the subordinate court has kept itself within the bounds of its jurisdiction invested in it. Though the difference between the two jurisdiction is subtle, it is yet quite real and it is well recognized in the legal provinces. ये definition आप याद रखिएगा. I must tell you, I must give you an illustration. देखिए, जब आप किसी जजमेंट से अपील करते हैं तो appellate कोर्ट जो है लोअर कोर्ट के जजमेंट को का एविडेंस अप्रिशिएट कर सकता है. वो हो सकता है उस फाइंडिंग से एग्री ना करे, फाइंडिंग पलट दे. पर रिविजनल कोर्ट में जब आप जाते हैं तो आपकी नेचर ऑफ ग्रीवियंस अलग होता है. आप कहते हैं कि जो लोअर कोर्ट है उसका जो ऑर्डर है लीगल नहीं है, प्रोपराइटी उसकी लीगल नहीं है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर ऑर्डर. तो ऐसे में कोर्ट एविडेंस नहीं सीधे रीअप्रिशिएट करता है. वो ये देखता है कि क्या जिस कोर्ट ने पर्टिकुलर ऑर्डर पास किया है या पर्टिकुलर जो भी जजमेंट या कोई भी ऑर्डर पास किया है, तो क्या वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता था. वॉज इट विद इन द कन्फाइंस ऑफ हिज ज्यूरिसडिक्शन. लेट अस सपोज अ मैजिस्ट्रेट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया, ही हैज़ गिवन अ वंडरफुल जजमेंट, लेकिन उसने सेशंस ट्रायल की जगह खुद ही ट्राई कर लिया है. मर्डर के केस में
ये सेशंस ट्रायल होना था, ये मर्डर का केस था, मैजिस्ट्रेट ने बहुत अच्छे से एविडेंस अप्रिशिएट किया, मैजिस्ट्रेट ने पूरी प्रोसीडिंग अच्छे से करी और इतनी बहुत अच्छा एकदम खूबसूरत सा जजमेंट दिया विद अ परफेक्ट फाइंडिंग ऑन फैक्ट्स। लेकिन क्या था, क्या मैजिस्ट्रेट के पास ज्यूरिसडिक्शन है मर्डर केस को ट्राई करने का? आंसर इज नो। तो यहाँ पे जब रिविजनल प्रोसीडिंग होगी तो कोर्ट बस इतना ही सी चीज़ देखेगा कि मैजिस्ट्रेट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, अभी जितना भी अच्छा ऑर्डर हो इट हैज़ टू बी सेट असाइड। तो लीगैलिटी, प्रोप्राइटरी एंड रेगुलरनेस ऑफ द ऑर्डर इज सीन बाय द रिविजनल कोर्ट। वो ज्यूरिसडिक्शन से ज़्यादा कंसर्न होता है, इट इज़ मोर कंसर्न विद द ज्यूरिसडिक्शन, वाइल द appellate कोर्ट इज अकिन टू द appellate कोर्ट प्रोसीडिंग इज अकिन टू योर लोअर कोर्ट प्रोसीडिंग्स। वो एक तरीके से कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग चल रहा है, ठीक है। तो लोअर कोर्ट ने मान लीजिए जजमेंट ऑफ कन्विक्शन दिया, आप appellate कोर्ट गए, अब appellate कोर्ट वही एविडेंस कंसिडर कर सकता है, एविडेंस रीअप्रिशिएट कर सकता है और रीअप्रिशिएट करने के बाद वो हो सकता है जजमेंट ऑफ अक्विटल ले दे कन्विक्शन की जगह। अगर अपहेल्ड करता है तो ठीक है, लेकिन हो सकता है वो अक्विटल भी कर दे, तो रीअप्रिशिएट एविडेंस कर सकता है। रिविजनल कोर्ट जनरली ऐसा नहीं कर सकता। ऑलराइट, सो दोनों में जो डिफरेंस है वो ध्यान में रखिएगा, ये प्रोसीडिंग्स एकदम अलग अलग हैं और जनरली जहाँ पे अपील होती है वहाँ रिवीजन नहीं लाया कर सकता। ऑलराइट, वेयर देयर इज अ राइट टू अपील, द राइट टू रिवीजन इज जनरली नॉट देयर। So this was it. Now we can start. Since I have given you the definition, I can start with the reading of the Bayer Act. So 372 says no appeal to lie unless otherwise provided. So the legislature is making one thing clear, that from any judgment or order of the criminal court, an appeal cannot lie unless it is provided by the CRPC or by any other law for the time being in force. Then secondly, it has a proviso, very interesting proviso. There's a victim shall have a right to prefer an appeal against any order passed by the court acquitting the accused first. This is court acquitting the accused, if the court has acquitted the accused person, or convicting for a lesser offense. If let us suppose the charge was for murder but court convicted the person for culpable homicide, then in those case the victim again has a right to appeal because he has been convicted for a lesser offense or for imposing inadequate compensation. Alright, if let us suppose compensation under 357 is not adequate for the purpose of your victim, then the victim can prefer appeal on the grounds that inadequate compensation has been imposed, and such appeal shall lie to the court where the appeal ordinarily lies against the order of conviction of such court. Always remember there are only three grounds. First is court acquitting the accused, second is convicting for a lesser offense, and third is imposing inadequate compensation, that is present under section 372 of the CRPC. Then I must tell you a case law on this, that whether the proviso allows the victim to appeal for enhancement of sentence. See, under section 300 and 377 of the CRPC, it empowers the state government through public prosecutor to appeal on the ground that the sentence imposed is inadequate. So it can actually approach the state government can actually approach the superior court in order to enhance the sentence. Let us suppose in a murder case, sessions judge has given life imprisonment, then state government through public prosecutor has the power to actually approach the High Court and ask that life imprisonment in present case is very less, the convict must be given death penalty. So it can approach on this ground. But can the victim approach the superior appellate court on this ground that inadequate sentence has been imposed? Then the answer is no, it cannot do so. It can section 372 proviso will not allow a victim to appeal on the ground that the sentence imposed by the trial court is inadequate. Alright, so victim can only approach the superior court, appellate court on three grounds: acquittal of the accused, conviction of the accused for a lesser offense, imposing inadequate compensation.
So always remember that this legal point has been settled by the Supreme Court in National Commission for Women versus State of Delhi and another in 2010. It was reiterated recently by the Delhi High Court in Ashok Malhotra versus State Government of NCT of Delhi and another. It was in 2019. The judgment was reported in 2019. And I must also tell you some principles regarding the interpretation of statute, that why it doesn't have that. See, the right of the victim to appeal is contained in a proviso first of all. Then how do you interpret a proviso? See, when one finds a proviso to a section, the natural presumption is that but for the proviso, the enacting part of the section would have included the subject matter of the proviso. That is the first principle regarding the interpretation of statute. So proviso is to be considered as an exceptional clause within the main section. Second is, proviso must be construed with the reference to the preceding parts of the clause to which it is appended. So proviso under 372 is appended to what? It is appended to your opening parts, which says no appeal has to be provided unless otherwise allowed by the CRPC or by any other law. So it must be construed in that sense, that generally the section starts with a prohibitory clause. जो सेक्शन शुरू हुआ है 372 वो प्रोहिबिट करने के नेचर से शुरू हुआ है कि आपको अपील का राइट जनरली नहीं है अनलेस हमने दिया हो, तभी जब तो उसमें अगर प्रोवाइजो लेजिस्लेचर ने लगाया है तो इसका मतलब ये है कि बड़ा ही लिमिटेड स्कोप है, इसीलिए वो लिमिटेड स्कोप में वो जो 3 चीज़ें दी गई हैं उन्हीं में कन्फाइंड रहेगा. ऑलराइट. Third principle for interpreting a proviso is that where the proviso is directly repugnant to a section, the proviso shall stand and be held as the repeal of the section, as the proviso speaks the later intent of the makers. तो वहाँ पे एक और इंटरप्रिटेशन का प्रिंसिपल होता है कि अगर प्रोवाइजो इस नेचर का है जो मेन सेक्शन को रिपील ही करने की कैपेसिटी रखता है, मतलब ओब्लिटरेट कर रहा है, तो ये मान लिया जाएगा कि प्रोवाइजो में ही मेन इंटेंशन है. और नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है प्रोवाइजो को इंटरप्रेट करने का, कि प्रोविजन को हमेशा मेन सेक्शन का सबऑर्डिनेट होता है. ठीक है. थर्ड और नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है उसको इंटरप्रेट करने का प्रोवाइजो का, कि अगर सेक्शन में आपको डाउट होता है तो प्रोवाइजो इज़ अ यूजफुल गाइड फॉर इंटरप्रिटेशन. अगर सेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्रोवाइजो के थ्रू आप उसे समझ सकते हैं. फिर कंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन कैसा प्लेस होना चाहिए प्रोवाइजो पे, ऐसा इंटरप्रिटेशन प्रोवाइजो पे प्लेस होना चाहिए जो मेन सेक्शन के ऑब्जेक्ट को भी फर्दर करे और प्रोवाइजो की क्वालिफिकेशन को भी मेंटेन करे, ऐसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए. फिर समटाइम्स प्रोवाइजो के अंदर भी सब्सटैंशियल प्रोविजन हो सकते हैं. ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में बता रहा हूँ कि आपको प्रोवाइजो कैसे इंटरप्रेट जनरली करना चाहिए. ऑलराइट. सो next in line the important section under appeals is section 374. ये आपका जो वो वाला सेक्शन है 373 वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा. ये ऑर्डर फॉर कीपिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल और एक्सेप्टिंग श्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, ये जो प्रोविज़न है उसमें जनरली किसके पास अपील जाएगी, तो आप कोर्ट ऑफ सेशन को अपील कर सकते हैं. तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 374 इम्पोर्टेंट है, ये आपको जानना है और याद भी रखना है. एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय अ हाई कोर्ट इन इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिसडिक्शन में अपील टू सुप्रीम कोर्ट. सो लेजिस्लेचर की स्कीम जनरली है कि एक राइट टू अपील तो होना चाहिए. आप सोच रहे होंगे हाई कोर्ट ट्रायल कहाँ पे करता है, हाई कोर्ट के ट्रायल का तो प्रोविज़न आपने देखा ही नहीं, सेशंस कोर्ट के ट्रायल का प्रोविज़न ही अभी तक आपने देखा है. सो आई विल टेल यू वेयर द प्रोविज़न रिगार्डिंग द ट्रायल बाय हाई कोर्ट इज़. जरा सेक्शन 474 देखिएगा. वो कहता है कि व्हेनेवर हाई कोर्ट कोई ऑफेंस ट्राई करता है अनलेस इट हैज़ रिमांडेड द केस इटसेल्फ. मान लीजिए मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से उसने रिमांड कर लिया अपने पास, तो ट्रायल तो वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट की रहेगा. वही प्रोविज़ो है 407 का, तो 407 को अभी किनारे कर दीजिए. लेकिन जनरली कौन सा प्रोसीजर हाई कोर्ट में चलेगा अगर वो केस ट्राई करता है, वही ट्रायल फॉर द कोर्ट ऑफ सेशन, वही वाला प्रोसीजर चलेगा.
हाई कोर्ट में। सो ये उसी की बात कर रहा है 374 की, अगर हाई कोर्ट ने ट्राई किया है तो यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। अभी हम सीआरपीसी की बात करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जाएंगे। आर्टिकल 132, 133, 134, 4A एंड 136, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो एकदम सेपरेट टॉपिक है। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय अ सेशंस जज और एन एडिशनल सेशंस जज on a trial held by any other court in which the sentence of imprisonment for more than 7 years has been passed against him or any other person convicted at the same trial may appeal to high court। अगर 7 साल के ऊपर का कोई पनिशमेंट दिया गया है, more than 7 years होना चाहिए, तो he can appeal to the high court। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये सेशन जज और एडिशनल सेशन जज हो गया, तो फिर ये एनी अदर कोर्ट क्या है? ये असिस्टेंट सेशन जज है। असिस्टेंट सेशन जज होता है वो 10 साल तक की सज़ा दे सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी भी केस में उसने 7 साल के ऊपर की थी, देन यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट। फिर सब सेक्शन 3 आता है, वो कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर सब सेक्शन 2 एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और असिस्टेंट सेशन जज और अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास और सेंटेंस अंडर 325 जो एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस के लिए प्रोसीडिंग सबमिट की जाती है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ वूम एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड और अ सेंटेंस हैज़ बीन पास्ड अंडर सेक्शन 360 बाय एनी मैजिस्ट्रेट में अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन। तो मैजिस्ट्रेट्स की जनरली अपील किसके पास जाएंगी? कोर्ट ऑफ सेशंस के पास जाएंगे। सम पीपल रॉन्गली अज्यूम इज द सीजीएम के पास जाएंगी, नहीं, सीजीएम के पास नहीं जाती हैं, कोर्ट ऑफ सेशंस के पास जाती हैं। 4th क्लॉज कहता है, जो 2018 में आया है, व्हेन एन अपील हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट अ सेंटेंस पास्ड अंडर सेक्शन 376 A, B, B, C, D, DA, DB and E of Indian Penal Code, the appeal shall be disposed of within 6 months from the date of filing। तो एक जनरल टाइमलाइन दिया हुआ है। ये जनरल टाइमलाइन वैसे हर अपील के लिए होता है जो सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ से आता है, पर लेजिस्लेचर ने रेप लॉ के लिए लिख दिया है कि जनरली 6 मंथ्स में हो जाना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल कितना है ये तो आपको प्रैक्टिस में ही पता चल जाएगा। इट्स नॉट एट ऑल अ प्रैक्टिकल पीरियड एंड टाइम लिमिट। अब सेक्शन 375 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत आता है कि कब अपील नहीं आती है, व्हेन यू प्लीड गिल्टी। ये कहता है नॉट वेस्टैंडिंग एनीथिंग इन 374, सो इट्स एन नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। ये ओवरराइड करता है 374 को कि व्हेन एन अक्यूज पर्सन हैज प्लीडेड गिल्टी। आपको याद होगा सेशंस ट्रायल में 229 में प्लीड गिल्टी करता है। तो लेट अस सपोज ही हैज प्लीडेड गिल्टी और उस प्ली पे कन्विक्ट कर दिया गया, तो राइट टू अपील नहीं होगा आपके पास इफ द कन्विक्शन इज बाय हाई कोर्ट। तो और देखिए इसके बाद कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया तो देन यू विल हैव नो राइट टू अपील। एंड बी, if the conviction is by a court of session, metropolitan magistrate, magistrate of first class, except as to extent or legality of the sentence। तो ये क्लॉज भी कहता है कि आप कन्विक्शन पे अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने किसी भी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया तब भी आप अपील नहीं कर सकते, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट और लीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस। तो जो सेंटेंस है उस ग्राउंड पे कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन का डेथ सेंटेंस कंफर्म होना होता है। तो अगर मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन ने डेथ सेंटेंस करके बोल दिया एग्जीक्यूट कर दो उसे, तो वो इस ग्राउंड पे अपील कर सकता है कि मैंने प्लीड गिल्टी तो किया है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस तब तक एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता है जब तक वो हाई कोर्ट से कंफर्म ना हो जाए। और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने मान लीजिए 14 साल की सज़ा सुना थी, वो दे सकता है इन अ सिंगल ऑफेंस 3 साल, और मान लीजिए उसने पूरे केस में 14 साल की सज़ा सुना दी। तो ऐसे केस में यू कैन अप्रोच योर दिस कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट एज रिगार्ड्स टू दी लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस, कि जो लीगैलिटी है, जो सेंटेंस पास किया वो लीगल नहीं। कन्विक्शन को लेके आप अप्रोच नहीं करते, आप लीगैलिटी को लेके करते हैं। अच्छा, यही क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं क्योंकि हाई कोर्ट पे कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, वो कैसा भी सेंटेंस पास कर सकता है। फिर 376 पे आते हैं, नो अपील इन पेटी केसेस। ये 375 और 376 भी इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद 377 और 378 आर वेरी इंपॉर्टेंट।
कि 376 कहता है नो अपील इन पेटी केसेस। अब क्या है पेटी केसेस? अब ये नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 374, अब ये 374 को फिर ओवरराइड कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर हाई कोर्ट ने सिर्फ 6 महीने का सेंटेंस पास किया या उसके अंदर का और फाइन 1000 रुपये तक का लगाया है तो कोई अपील नहीं जाएगी। जहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट दिया है और जो फाइन लगाया है वो 200 रुपये से ऊपर का नहीं है, तो ऐसे केस में आप अपील नहीं कर सकते। या जहाँ पे मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पासेस ओनली अ सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज़, तो वहाँ पे भी आप अपील नहीं कर सकते। When in a case tried summarily, magistrate empowered to act under section 260 passes only a sentence of fine not exceeding 200 रुपीज़। अगर समरी ट्रायल में आपने कन्विक्शन किया है तो 200 रुपये के ऊपर आपने फाइन अमाउंट नहीं लगाया है, तो ऐसे केस में आप अपील नहीं कर सकते। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इस मामले में इक्विवेलेंट है कि जहाँ पे उसने 3 महीने का सेंटेंस दिया है और फाइन 200 रुपये तक का 200 रुपये या उसके अंदर का लगाया है, तो ऐसे केस में भी अपील नहीं हो सकती। देखिए मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का स्टेटस जेएम फर्स्ट क्लास के बराबर होता है, पर कुछ लीवेज उसको लेजिस्लेचर ने दिए हैं। उसका रीज़न ये है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ जो होते हैं वो कमर्शियल एरियाज़ होते हैं और जनरली वहाँ पे चीज़ों को फास्ट ट्रैक होने की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो इसलिए मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को आप कई प्रोविजंस देखेंगे, ये इट इज़ वन ऑफ द प्रोविजन। और सीआरपीसी में भी बहुत सारे प्रोविजन हैं जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के लिए कई कई जगह स्पेशल एग्जेम्पशन बनाते हैं। यही चीज़ आपने जजमेंट के लिए भी देखा होगा कि जब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जजमेंट लिखता है तो वो अलग तरीके से लिखता है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जब एविडेंस रिकॉर्ड करता है तो वो अलग तरीके से लिखता है। मैं प्रीवियस लेक्चर में डील कर चुका हूँ। Provided that any appeal may be brought against any sentence if other punishment is combined with it, but the sentence shall not be appealable merely on the ground that the person is convicted and is ordered to furnish a security for keeping peace. 106 या 117 as the case may be of the CRPC. Second is direction for imprisonment in default of payment of fine is included. तो डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन, यू रिमेंबर मैंने फ़ाइन का जब नेचर डिस्कस किया था तो मैंने बताया था इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन में जो सेंटेंस होता है इट इज़ अकिन टू अ नेचर ऑफ पेनल्टी। थर्ड इज दैट मोर देन वन सेंटेंस ऑफ फाइन इज पास्ड द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन डज नॉट एक्सीड द अमाउंट एज हियर इन बिफोर प्रिस्क्राइब। ठीक है, सेक्शन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो एक सवाल पे हम आते हैं कि अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 2 द स्टेट गवर्नमेंट में इन द केस ऑफ कन्विक्शन ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय अ कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील अगेंस्ट द सेंटेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स इनएडिक्वेसी। तो कौन अपील प्रेजेंट करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये याद रखिएगा, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ही राइट है। 377 में स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद इट इज़ ओनली अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु कैन फाइल एन अपील ऑन द ग्राउंड ऑफ एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस। प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता। ठीक है, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर लीवे भी दे देता है प्राइवेट पर्सन को ऐसा करने के लिए तो वो भी नहीं अलाउड है। इट इज़ ओनली द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु हैज़ टू फाइल इट। सो एन अपील अगेंस्ट द सेंटेंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इट्स इनएडिक्वेसी टू द कोर्ट ऑफ सेशन, अगर सेंटेंस मैजिस्ट्रेट की कोर्ट ने पास किया है, और हाई कोर्ट इफ द सेंटेंस इज पास्ड बाय एनी अदर कोर्ट। जो सेकंड प्रोविजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेट करता है। वो सेम बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी ऑफेंस सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि अपील प्रेजेंट करे ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज इनएडिक्वेसी टू द कोर्ट ऑफ सेशन अगर सेंटेंस इज पास्ड बाय द मैजिस्ट्रेट, एंड द हाई कोर्ट इफ द सेंटेंस इज पास्ड बाय एनी अदर कोर्ट। थर्ड क्लॉज कहता है एन अपील हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट द सेंटेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स इनएडिक्वेसी द कोर्ट ऑफ सेशन और एज द केस में बी द हाई कोर्ट शैल नॉट इनहैंस द सेंटेंस except after giving the accuser reasonable opportunity of showing cause against the enhancement, and while showing the cause accused may plead for his acquittal or for reduction of sentence। तो ये कह रहा है, ये इस क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि जब भी आप किसी को कन्विक्ट कर रहे हो, मतलब एनहांसमेंट
फॉर सेंटेंस की अपील सुन रहे होंगे तो आप अक्यूज को हियरिंग का मौका देंगे, और उस हियरिंग में अक्यूज रिडक्शन भी प्रे कर सकता है कि सेंटेंस कम कर दिया जाए, या ये भी कह सकता है कि मुझे गलत तरीके से कन्विक्ट किया गया है, मुझे एक्विट कर देना चाहिए। और वही 4th क्लॉज कहता है रेप ऑफेंसेस हैं 6 महीने में डिसाइड हो जाने चाहिए। तो 378 पे आते हैं। अभी मैं इन सब के नुआंसेस से डील करूँगा, पर पहले आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये प्रोविज़न है कैसे, इनके अंदर क्या क्या है। तो अपील इन केस ऑफ अक्विटल, ये विक्टिम भी कर सकता है, और ये अथॉरिटी स्टेट रिप्रेजेंटेड टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और फाइलिंग कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली ऑथराइजिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर व्हेन द केस हाई कोर्ट में फाइल करना है। तो 378 कहता है अपील इन द केस ऑफ एक्विटल, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द एक्विटल पास्ड बाय द मैजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये बात याद रखिएगा कि ऑफेंस हमेशा कॉग्निजेबल होना चाहिए और नॉन बेलेबल होना चाहिए व्हेन यू आर अप्लाइंग अंडर 378। अगर वो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल नहीं हुआ, या नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल हुआ, तो ऐसे केस में यू कैन नॉट फाइल एन अपील। इट हैज़ टू बी ए कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो इसे मार्क कर लीजिएगा और ये याद भी रखिएगा। सिमिलर थिंग इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि इट कैन डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एन ओरिजिनल or appellate order of acquittal passed by any court other than the high court, not being an order under clause A or an order of acquittal by the court of session in revision। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये लीवे मिला हुआ है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह सकते हैं कि आप हाई कोर्ट में केस फाइल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि हाई कोर्ट में अपील फाइल करो अक्विटल, अक्यूज्ड के अक्विटल के खिलाफ, और वो जो अक्विटल है वो चाहे ओरिजिनल प्रोसीडिंग में हुआ हो या अपेलेट प्रोसीडिंग में हुआ हो, तो ऐसे केस में हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील फाइल कर सकता है। इट डजेंट मैटर कि कौन सी प्रोसीडिंग थी जिसमें फाइल हुआ, चाहे वो अपेलेट हो चाहे वो ओरिजिनल हो। ओरिजिनल प्रोसीडिंग होती है ट्रायल कोर्ट के सामने, अपेलेट कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है जब मैटर अपील पे जाता है। तो उससे रिस्ट्रेंट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन किस बात से रिस्ट्रेंट है स्टेट गवर्नमेंट? कि वो ऑर्डर क्लॉज ए के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब जहाँ पे क्लॉज ए अप्लाई करता है, जहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने मान लीजिए कन्वर्ट किया है, तो अपील जा सकती है तब कोर्ट ऑफ सेशन के पास। तो अगर उस केस में जाता है तो वो ऐसा ऑर्डर नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या है कि अगर ऑर्डर ऑफ अक्विटल पास कर दिया गया है कोर्ट ऑफ सेशन बाय द कोर्ट ऑफ सेशन इन रिवीजन, इट शुडंट फॉल अंडर दैट क्लॉज ऑल्सो। यही चीज़ वो स्टेट, अब क्लॉज 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेम बात करता है। देखिए एक प्रोविजन याद कर लीजिए और ऑटोमेटिकली आपको दूसरा प्रोविजन याद हो गया कि ये चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके है। अगर CBI ने उसे इन्वेस्टिगेट किया, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में जो पुलिस फोर्स इस्टेब्लिश्ड है वो CBI ही है। तो सेम प्रोविजन इस पर भी अप्लाई करते हैं, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। देखिए ध्यान रखिए इन दोनों ही सिचुएशन में 377 378 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही अथॉरिटीज़ हैं जो फाइल कर सकते हैं। थर्ड इज नो अपील टू द हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 और 2 शैल बी एंटरटेन्ड एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब अपील आप फाइल तो कर सकते हो लेकिन उसका एंटरटेनमेंट तभी हो सकता है जब हाई कोर्ट की लीव मिले। यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन एंड एडमिट, और अपील तब तक नहीं एडमिट हो सकती जब तक आप हाई कोर्ट से परमिशन ना ले लो कि हाँ यू कैन फाइल एन अपील। सो रिमेंबर दिस कि अपील हाई कोर्ट में तब तक नहीं फाइल हो सकती विदाउट द लीव ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, ये मार्क कर लीजिएगा और ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। देन 4th क्लॉज पे आते हैं। इफ एन ऑर्डर ऑफ अक्विटल इज पास्ड इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन द कंप्लेंट, मतलब कंप्लेंट केस है, the High Court on the application made to it by the complainant in this behalf grants special leave to appeal from the order of acquittal. The complainant may present such an appeal to the High Court. तो अगर complainant के पास को, अगर complainant को special leave to appeal मिल गई है तो वो भी High Court में केस फाइल कर सकता है। अब सबसेक्शन 5 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 months और 60 days का पीरियड मार्क कर लीजिएगा।
कि स्पेशल लीव टू अपील के लिए अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन का लिमिटेशन पीरियड होगा वो जनरली अगर कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट की है, जो सब क्लॉज 4 में कंप्लेंट जो केस है वो पब्लिक सर्वेंट की है तो 6 महीने का होगा, और अगर प्राइवेट पर्सन की है तो 60 दिनों का होगा। ठीक है। इन एनी केस द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4 for grant of special leave to appeal from an order of acquittal is refused, no appeal from that order of acquittal shall lie under subsection 1 और subsection 2। subsection 6 क्या कह रहा है? अगर grant of special leave to appeal आपने मांगी कंप्लेंट केस में और वो मना कर दी गई तो फिर आप दोबारा अपील नहीं कर सकते उस ग्राउंड पे। ठीक है। अब इसके लिए अपील नहीं कर सकते कि मुझे स्पेशल लीव टू अपील नहीं दी गई है। अब मैं यहीं पे थोड़ी देर रुकता हूँ, मैं अब आपको इसके कुछ नुआंसेस के बारे में बताऊँगा। तो देखिए, विक्टिम कौन है? विक्टिम वो है जो सेक्शन 2WA में प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है। तो वो विक्टिम की डेफिनेशन है। तो विक्टिम का जनरली वो मतलब मत समझिएगा कि एक्चुअली पर्सन अफेक्टेड बाय क्राइम। अगर पर्सन मर गया, ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स अ पर्सन अफेक्टेड बाय अ क्राइम, बट लेकिन अगर पर्सन मर गया तो उसके जो लीगल हेयर हैं और गार्डियन है वो भी उसकी डेफिनेशन में आते हैं। तो विक्टिम का मतलब है एनी पर्सन हु हैज सफर्ड अ लॉस और इंजरी बाय द रीजन ऑफ एक्ट और ओमिशन फॉर विच द अक्यूज्ड पर्सन हैज बीन चार्ज्ड, एंड द एक्सप्रेशन विक्टिम विल इंक्लूड हिज गार्डियन और लीगल हेयर। तो एक सवाल उठा था कि क्या फादर ऑफ अ पर्सन, मान लीजिए कोई क्राइम कमिट हुआ है किसी चाइल्ड के खिलाफ, ठीक है, या किसी आदमी का मर्डर हो गया, तो क्या उसका फादर बाय द वर्च्यू ऑफ 372 वो फाइल कर सकता है अपील ऑन द ग्राउंड ऑफ कि अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया गया है? अपील इन द केस ऑफ अक्विटल के केस में अक्विट कर दिया गया, देन द आंसर इज ही कैन, वो कर सकता है, बट इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको लीव ज़रूर ले लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करते हुए बोला था सेक्शन 372 के प्रोवाइजो का और सेक्शन 378 के सब सेक्शन 3 को, दोनों को साथ में हारमोनियसली कंस्ट्रू करते हुए एक जजमेंट दिया था। जजमेंट का नाम था सत्यपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में, कि हाँ वो कर सकता है। तो उसमें बस एक मेन लीगल इशू ये था कि क्या लीव लेनी पड़ेगी या बिना लीव के भी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वो बिना लीव लिए नहीं कर सकता, उसे लीव लेके ही करना है, क्योंकि दोनों प्रोविजन को इफेक्ट देना है और दोनों को हारमोनियसली कंस्ट्रू करना है, दोनों को डेरोगेशन में कंस्ट्रू नहीं कर सकते अनलेस द डेरोगेशन इज ऑब्वियस। और एक ही प्रोविजन हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ये ग्राउंड लिया गया था कि 372 का प्रोवाइजो तो इंडिपेंडेंट राइट देता है, तो लीव लेने की क्या ज़रूरत? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, लीव लेने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों, अगर ये प्रोविज़न हमने हटा दिया तो सब्सटैंशियल प्रोविज़न नेगेटरी हो सकते हैं, और इसलिए आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू रीड दीज टू प्रोविजंस टुगेदर। ठीक है। तो ये बात आपको तो समझ में आ गई होगी थी कि अपील ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस में इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु कैन फाइल द अपील ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। जनरली आपका जो 372 में विक्टिम के पास ये राइट नहीं है कि वो इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस के ग्राउंड पे अपील कर पाए। अपील अगेंस्ट द अक्विटल में तो वो अपील कर सकता है, अगर कोर्ट ने अक्विट कर दिया है तो उस ग्राउंड पे तो वो अपील कर सकता है, और आफ्टर ऑब्टेनिंग द लीव ऑफ द हाई कोर्ट। लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, वो इनएडिक्वेट सेंटेंस के लिए अपील नहीं कर सकता। कि मान लीजिए किसी केस में सेशन जज ने कन्विक्ट तो कर दिया विक्टिम की कंप्लेंट पे, उसने पाया कि नहीं केस जेन्युइन है, एविडेंस एस्टैब्लिश हो गया और उसने कन्विक्ट कर दिया, तो कन्विक्ट को मान लीजिए उसने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, मर्डर केस में डेथ पेनल्टी नहीं दी, तो जो प्राइवेट कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, द विक्टिम कैन नॉट अप्रोच द हाई कोर्ट। द विक्टिम मैं उस सेंस में यूज़ कर रहा हूँ जैसा कि 2WA ने यूज़ किया है। विक्टिम तो मर्डर केस में डिसीज्ड होगा, तो डिसीज्ड का जो गार्डियन है या लीगल हेयर है, मान लीजिए उसके केस के फादर, मैं फादर का डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूँ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी यूज़ किया था, तो मैं उसमें समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि जैसे विक्टिम जो है इस केस में, उस विक्टिम की डेफिनेशन में फादर भी आ गए, बिकॉज द फादर इज़ द लीगल हेयर। तो ऐसे केस में
फादर को क्या इन्हेंसमेंट ऑफ सेंटेंस लेने का ग्राउंड है? फादर क्या हाई कोर्ट में ये बात ग्राउंड लेके अप्रोच कर सकते हैं कि नहीं डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, वो नहीं देना चाहिए, क्या कहते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं डेथ पेनल्टी देना चाहिए? देन द आंसर इज़ नो। ये मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही बता दिया था कि 372 इज़ ए लिमिटेड इन स्कोप। जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उसको मेन प्रोविजन, मेन एनैक्टमेंट के ओपनिंग हेडर को ध्यान में रखते हुए प्रोविजन को इंटरप्रेट करना चाहिए और उसको हार्मोनियसली कंट्रोल करना चाहिए बाकी अपील के प्रोविजन के साथ। तो अगर वहाँ पे नहीं दिया गया है तो, और 377 में जहाँ पे एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस के ग्राउंड्स दिए गए हैं वो सिर्फ क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो यू कैन नॉट हैव दिस प्राइवेट पर्सन अप्लाइंग फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। लेकिन अपील अगेंस्ट द एक्विटल में तो कर सकता है। अब अपील अगेंस्ट द एक्विटल में ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे लीव लेनी पड़ेगी, ठीक है। बस इतनी चीज़ का ध्यान रखिए कि हार्मोनियसली कंस्ट्रू करना है आपको 372 का प्रोवाइजो रेड विथ सेक्शन 378 सब सेक्शन 3 विच प्रोवाइड्स फॉर अपील अगेंस्ट द एक्विटल। तो 372 में तो सीधे लिखा है कि अपील अगेंस्ट द एक्विटल में अप्लाई करेगा 372 के प्रोवाइजो का प्रोविजन, बट यू रीड इट विथ 378 सबसेक्शन 3। और पीरियड कितने का होगा? पीरियड ऑफ कंप्लेंट केस पे मान लीजिए प्रोसीडिंग शुरू हुई है तो प्राइवेट पर्सन के केस में कितना होगा? 60 डेज। पब्लिक सर्वेंट है तो कितना होगा? 6 महीना। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि अपील अगेंस्ट द एक्विटल में जनरल गाइडलाइंस क्या होती हैं कोर्ट के पास। देखिए, अगर अक्यूज्ड अक्विट हो गया है तो आपको पता होगा कि ट्रायल कोर्ट में ऑलरेडी एक प्रिजम्पशन था कि द पर्सन इज innocent until proven guilty. Now that he has been acquitted, it means that the prosecution was not able to discharge its burden of proof beyond reasonable doubt. Second, after his acquittal, these grounds are further strengthened that the accused is innocent. Alright? So, this presumption is further strengthened when the trial court has acquitted a person in an appeal. तो इस बात का ध्यान एपेलेट कोर्ट को हमेशा रखना होगा कि वाइल हियरिंग एन अपील, देखिए ये बात तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कर सकता हूँ कि इट कैन रीअप्रिशिएट द एविडेंस और इंटरफियर भी कर सकता है फाइंडिंग से, वेयर इट फाइंड्स कि जो आपका ये है ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर परवर्स है, गलत है या नो एविडेंस पे बेस्ड है एक्सेट्रा, तो उस केस में वो इंटरफियर कर सकता है। लेकिन एपेलेट कोर्ट को किस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि ये जो प्रिजम्पशन था इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का, इट हैज़ बीन फर्दर स्ट्रेंथेंड बाय द एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है। सो अब मैं आपके लिए कुछ केस लॉ बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सनवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ये ग्राउंड्स बोला गया था कि एपेलेट कोर्ट के पास पूरी पावर है एविडेंस को रिव्यू करने की जिस पे ऑर्डर ऑफ एक्विटल फाउंड हुआ है। फिर जो कोर्ट की जो अप्रोच होनी चाहिए केस को हेयर करने के लिए, वो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए कि वो जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी है वो सारी चीज़ें स्ट्रेंथेन हो गई हैं और अक्यूज्ड एक्विट हो चुका है और बर्डन ऑफ प्रूफ प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं कर पाया था प्रोसिक्यूशन, तो मैकेनिकली ऑर्डर ऑफ एक्विटल से सुपीरियर कोर्ट को एपेलेट कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर कोर्ट ने बताया सनवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में कि जो कई जजमेंट्स में कोर्ट ने बोला है कि एपेलेट कोर्ट सिर्फ सब्सटैंशियल रीजंस या कंपेलिंग रीजंस के लिए ही फाइंडिंग ऑफ एक्विटल से इंटरफेयर कर सकता है, या गुड एंड सफिशिएंट कोजेंट रीजन या स्ट्रॉन्ग रीजंस के ग्राउंड पे ही वो इंटरफेयर कर सकता है ट्रायल कोर्ट की एक्विटल की फाइंडिंग से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई किया, ये एपेलेट कोर्ट की पावर को कर्टेल करने के लिए ये बातें नहीं करता है, वो बस ये बताने की कोशिश करता है कि आप इंटरफियर करो ना, तो ये इन बातों को ध्यान में रखना कि इंटरफियरेंस आप मैकेनिकली ना करो, छोटी मोटी बातों पे मत करो, बहुत उसके स्ट्रॉन्ग रीजंस होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया था कि एपेलेट कोर्ट ये भी ना समझे कि वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो बिल्कुल इंटरफेयर कर सकता है। इट हैज़ द पावर टू रिव्यू द इंटायर एविडेंस एंड कम टू इट्स ओन कंक्लूजन, बट इन डूइंग सो, जब वो ऐसा करता है, it should not only consider every matter on record having a bearing on the question of fact and the reasons given by the court below in the support of the order of acquittal in arriving at a conclusion on
those facts, but should also express those reasons in judgment which lead it to hold that the acquittal was not justified. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जब भी इंटरफेयर करेंगे तो आपके पास बिल्कुल पावर है इंटरफेयर करने की. यू कैन ऑफ कोर्स डिसएग्री विद द जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट एंड कम टू योर ओन कंक्लूजन बाय द रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस. बट व्हेन यू डू दैट after considering the entire matter on record and after looking at the question of fact and the reasons given by the court below in the support of its order of acquittal, but it is very essential for you to say to the appellate court, for the appellate court to say that why the acquittal was not justified. ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों एविडेंस पे acquittal justified नहीं था, ये ज़रूरी है. तभी कोर्ट ने बोला था कि सब्सटैंशियल, कंपेलिंग या स्ट्रॉन्ग रीजन या गुड और सफिशिएंट कॉज होना चाहिए. तो पहली चीज़ आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रेंथेंड है, जो प्रिंसिपल है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का, इट्स स्ट्रेंथेंड बाय द एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड. तो तभी कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट कहता है कि यू शुड ऑल्सो, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलेट कोर्ट शुड ऑल्सो प्रिस्क्राइब दैट व्हाई एक्विटल वाज नॉट जस्टिफाइड एंड व्हाई कंसिडरिंग ऑल द प्रिंसिपल्स and after reappreciation of evidence the conviction is necessary in the case of appeal from acquittal. यही जो बात है ये बलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कही थी सुप्रीम कोर्ट ने. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज़ वेल सेटल्ड दैट द कोर्ट हैज़ फुल पावर ऑफ रिव्यूइंग द एविडेंस अपॉन विच द ऑर्डर ऑफ acquittal is founded. It is equally well settled that the presumption of innocence of the accused person is further reinforced by his acquittal by the trial court, and the views of the trial judge as to credibility of the witness must be given proper weight and consideration. The slowness of the appellate court in disturbing a finding of fact arrived at by a judge who has the advantage of seeing the witness must also be kept in mind, and there must be a substantial and compelling reason for the appellate court to come to a conclusion different from the trial judge. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि हाँ appellate court के पास पावर है टू इंटरफेयर विद द जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट, लेकिन उसको एक चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट जो अक्यूज पर्सन के फेवर में था वो इट इज़ फर्दर स्ट्रेंथेंड. सेकंड, उसे ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रायल जज के पास एडवांटेज था विटनेस को देखने का. याद है जब मैं डिमेनर बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रायल जज कैन लुक एट द डिमेनर ऑफ विटनेस एंड कैन टेल बॉडी लैंग्वेज से या उसके कंडक्ट से कि वो सच बोल रहा है या झूठ, या क्यों उसकी टेस्टिमनी पे रिलाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ये सारी बातें हैं ना, यही सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है. उसने बोला कि ये बात अपीलेट कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रायल जज ने विटनेसेस को देखा है और उनका डिमेनर देखा है, तो दे आर वेरी अवेयर कि ऐसे में क्या करना चाहिए. और हाँ, ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रायल जजेस को डिमेनर ऑफ द विटनेस जनरली रिकॉर्ड करना चाहिए जिससे अपीलेट कोर्ट की मदद भी हो सके. और फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अपीलेट कोर्ट जो है उसको बहुत स्लो होना चाहिए फाइंडिंग ऑफ फैक्ट को इंटरफेयर करने में. एक फाइंडिंग ऑफ फैक्ट होती है, एक फाइंडिंग ऑफ लॉ होती है. फैक्ट वो होता है कि फैक्चुअल मैटर्स पे जो मान लीजिए विटनेस ने क्या पर्टिकुलर क्राइम देखा था या नहीं देखा था, ये फाइंडिंग ऑफ फैक्ट हो सकती है जो एविडेंस पे एस्टैब्लिश होगी. इट इज़ अ फाइंडिंग ऑफ फैक्ट. पर क्या ये जो एविडेंस विटनेस दे रहा है ये एडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में या नहीं, ये फाइंडिंग ऑफ लॉ कहलाती है, क्योंकि ये लॉ के मैटर से डील करती है कि एविडेंस एक्ट में वो एडमिसिबल है या नहीं. ठीक है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये एविडेंस में अच्छे से डील होगा. लेकिन अभी इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि जो फाइंडिंग ऑफ फैक्ट जो है, जो जज जिस पे जज अराइव करता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रायल जज ने विटनेस को देखा है, एंड ओनली देन it is allowed for the appellate court after considering the entire matter of record, entire principles और compelling reasons को ध्यान में रखते हुए बताना चाहिए कि क्यों acquittal justified नहीं था. ठीक है, अजमेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी सेम बात रिटेरेट हुई थी कि वेरी सब्सटैंशियल और कंपेलिंग रीजंस होने चाहिए आपके ऑर्डर फॉर एक्विटल से इंटरफेयर करने के लिए. तो ध्यान रखिएगा, मैं जिस सेंस में आपको बातें बता रहा हूँ उसको कभी ये मतलब मत समझ लीजिएगा. और सुप्रीम कोर्ट भी यही क्लैरिफाई करना चाहता है कि आप मिसकंस्ट्रू मत करिए जजमेंट को, क्योंकि शिवाजी वर्सेस साहेबराव वो बोवाडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि जूरिसडिक्शनल लिमिटेशन नहीं है अपीलेट कोर्ट की पावर्स पे.
देयर इज़ नो जुरिसडिक्शनल लिमिटेशन, वो चाहे तो रीअप्रिशिएट कर सकता है और पूरा एविडेंस रिव्यू कर सकता है, पूरा एविडेंस रीअप्रिशिएट करता है, क्रेडिबिलिटी डिटरमाइन कर सकता है, और जितनी भी रिकॉर्ड पे जितनी प्रोसीडिंग हो रही है उनको डिटेल में स्क्रूटिनी कर सकता है। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो उसको यही प्रिंसिपल्स जो मैंने अभी आपको रिटरेट किए, इनोसेंट एंड प्रूवन गिल्टी प्रूव हो चुका है, स्ट्रेंथन हो चुका है, साथ में आपका ये जो प्रिंसिपल है, क्या नाम है, कि ट्रायल जज हैज़ द एडवांटेज ऑफ लुकिंग एट द डिमीनर ऑफ विटनेस, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। उसको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्यों फाइंडिंग ऑफ अक्विटल से वो इंटरफेयर करना चाहता है और किस ग्राउंड पे अक्विटल जस्टिफाइड नहीं है। ये सारी चीज़ें तो किसी की लिबर्टी जनरली इंटरफेयर ना हो जाए मैकेनिकली, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इतने राइडर लगा रखे हैं। अब एक केस है अहिर राजा खीमा वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र में, 1955 का था ये। तो अक्यूज्ड वाज प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 302 and 447 of the IPC. He was acquitted by the trial court but convicted by the High Court. Then Supreme Court, dealing with the power of the High Court against the order of acquittal, said, it is in our opinion well settled that it is not enough for the High Court to take a different view of evidence. There must be substantial and compelling reasons for holding that the trial court was wrong. ये दिखाना चाहिए सुपीरियर अपेलेट कोर्ट को कि ट्रायल कोर्ट गलत था। सिर्फ यही नहीं कि दूसरा व्यू पॉसिबल है, क्योंकि अगर दो व्यूज पॉसिबल हो सकते हैं इन एन अपील अगेंस्ट एन अक्विटल, अगर दो व्यू पॉसिबल होते हैं, एक व्यू है जो अक्यूज को कन्विक्ट कर रहा है और एक व्यू है जो अक्यूज को अक्विट कर रहा है, देन यू विल फॉलो द व्यू विच इज इन द फेवर ऑफ द अक्यूज्ड, द वन इन विच द अक्यूज्ड इज अक्विटेड। सेम चीज़ ट्रायल पे भी है, ट्रायल पे भी सेम प्रिंसिपल होता है। हाँ, लेकिन पूरा रिकॉर्ड देखते हुए सिर्फ एक ही व्यू बन रहा है कि अक्यूज पर्सन इज गिल्टी, ऑफ कोर्स इंटरफेयर विद दैट फाइंडिंग ऑफ अक्विटल। तब आप एज एन अपेलेट कोर्ट इंटरफेयर कर दीजिए उस ऑर्डर से एंड रिकॉर्ड अ फाइंडिंग ऑफ गिल्टी। लेकिन ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग और कंपेलिंग रीजंस होने चाहिए और ये भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए कि ट्रायल कोर्ट गलत क्यों था। फिर ये जो कॉशियस अप्रोच के प्रिंसिपल्स हैं, इसको भी एमजी अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बताया कि भाई आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ट्रायल जज जो है वो उसके पास एडवांटेज है टू लुक एट द डिमीनर ऑफ विटनेस, और अपेलेट कोर्ट के पास नहीं होती, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए। फिर सुप्रीम कोर्ट सेड इन 1996 रमेश बाबूलाल दोषी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में कि वाइल सिटिंग इन अ जजमेंट ओवर एन एक्विटल, the appellate court is first required to seek an answer to the question that whether the findings of a trial court are palpably wrong. कि मतलब आप सीधे देख सकते हो कि फाइंडिंग है गलत है, manifestly erroneous or demonstrably unsustainable. So in those cases only, if the appellate court answers the above question in negative, देन दी ऑर्डर ऑफ अक्विटल इज नॉट टू बी डिस्टर्ब। कि अगर कोर्ट ने पाया कि अपेलेट कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर पैल्पेबली गलत नहीं था, मैनिफेस्टली एरोनियस नहीं था या डेमोन्स्ट्रेबली अनसस्टेनेबल नहीं था, तो ऐसे केस में अपेलेट कोर्ट को ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए एविडेंस एक बात कहता है कि ऑन द मैटर्स ऑफ एविडेंस ये दिखता है कि अक्यूज ने क्राइम किया, और ट्रायल जज जो है एविडेंस को एकदम दरकिनार कर देता है और कहता है कि ये जो फाइंडिंग है मेरे हिसाब से अक्यूज ने ऑफेंस नहीं किया, जबकि पूरा एविडेंस एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि अक्यूज ने क्राइम किया, कि accused has committed a crime, but a trial judge is saying that the accused has not committed the crime. So in those situations what will happen? Here the finding is perverse, it is palpably wrong. So in this case appellate court can interfere, it can look at the record and say the trial court is wrong because of these reasons. फिर evidence record करेगा, बताएगा कि किस ground के basis पे है कि जो evidence collect हुआ था इससे यही conclusion बन रहा है, लेकिन trial court ने erroneously या in a perverse manner, not
रिकॉर्डेड इन ऑर्डर ऑफ अक्विटल, तब तो इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन जहाँ पे वो गलत नहीं है, ट्रायल कोर्ट एरोनियस नहीं है, या उसका जजमेंट अनसस्टेनेबल नहीं है, इट इज़ सस्टेनेबल इन other cases, the judgment is sustainable, so then in those situations your appellate court will not interfere with the finding of the trial court. So if only appellate court holds for the reasons to be recorded that the order of the acquittal cannot at all be sustained, only then it can reappraise the entire evidence, come to its own conclusion, then prove that the trial court is wrong. तो पहले तो उसे ये देखना होगा कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर रॉन्ग है या नहीं है, then it can go embark on the exercise of reappreciation of evidence. ठीक है, उसके लिए आप रिकॉर्ड को ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं कि हाँ जनरली तो मुझे लग रहा है एविडेंस ये जो फाइंडिंग्स हैं गलत हैं, देन यू कैन कंसिडर आगे का स्टेप ले लें, रीअप्रिशिएट कर लें एविडेंस को। नरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी यही बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये सन 2000 में। देखिए रिइटरेट होता जा रहा है केस लॉ, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कंसेप्ट है, एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपका मेजॉरिटी काम सॉल्व हो जाता है। एक बार बस कंसेप्ट समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट को इतनी दिक्कत क्या होती है लोगों जजेस को कंसेप्ट समझाने में, तो इसीलिए एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर अवधेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में भी जो प्रिंसिपल मैंने अभी तक आपको बताए वही सारे फिर से रीइटरेट हुए। Unless the appellate court comes to a conclusion that the entire approach of the trial court in dealing with the evidence was patently illegal or the conclusions arrived at were wholly untenable, only then it can interfere with the findings of the trial court on sufficient grounds. ठीक है, ऐसे मैकेनिकली आप नहीं कर सकते। इसको बस ध्यान रखिएगा, ऐसे ना कंस्ट्रू कर लीजिएगा कि एपेलेट कोर्ट के पास पावर ही नहीं है रीअप्रिशिएट करने की। पावर है, लेकिन वो पावर क्वालिफाइड पावर है। देखिए इन लॉ merely because you have the power to do something doesn't mean you should do something. The presence of power is not the justification for the exercise of power. All right, so always remember that there should be sufficient grounds for the exercise of power, not because merely you have the power present with yourself. इन हरिजन थिरुपल वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये 2002 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात की कि in an appeal against an order of acquittal, the appellate or conviction, the appellate court of first appeal has full power to review the evidence and reach its own independent conclusion. However, it will not interfere with the order of acquittal lightly or merely because one view is possible. Because with the passing of an order of acquittal, the presumption of an innocence in the favor of the accused gets reinforced and strengthened. The High Court would not be justified to interfere with the order of acquittal merely because it feels that sitting as a trial court, it would have proceeded to record a conviction. A duty is casted on the trial court while reversing an order of acquittal to examine and discuss the reasons given by the trial court to acquit the accused and then to dispel those reasons. तब उन reasons का खंडन करें on the matters of evidence. If the High Court fails to make such exercise, the judgment will suffer from serious infirmity. Then you can approach the Supreme Court under Article 136 and can say that the High Court has violated the law as laid down in Harijan Thirupal versus Public Prosecutor, High Court of Andhra Pradesh, and you can get the judgment revised. ये प्रैक्टिस का मैटर है। बट आप देख रहे हैं ट्रायल जज कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है। ट्रायल जज इज द किंग पिंग ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। बिना उसके इट्स द रूट जिस पे पूरा जुडिशियल सिस्टम रहता है। सो इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम अ मैजिस्ट्रेट और सेशन जज, तो ध्यान रखिए यू आर द रूट जिस पे कंट्री का पूरा जुडिशियल सिस्टम टिका है। आप अगर गलत हुए पूरा सिस्टम ध्वस्त। ऑलराइट, देख लीजिए हाई कोर्ट भी इंटरफेयर इतने आराम से नहीं कर सकता आपकी जजमेंट से, इवन दो इट्स द हाई कोर्ट। सो अगेन रामानंद यादव वर्सेस प्रभुनाथ झा 2003 का जजमेंट है, इसमें भी सेम ग्राउंड्स रिटरेट किए। मैं आपके लिए सारे जजमेंट्स इसलिए एकदम सीक्वेंस में कलेक्ट करके रखता हूँ ना, जिससे आपको कभी भी कोई डाउट ना हो। दैट एक यूनानिमस पोजीशन है सुप्रीम कोर्ट की। ये पोजीशन ना आज चेंज नहीं होने वाली है ना कल चेंज होने वाली है। इट इज़ अ परमानेंट पोजीशन। अब एक चंद्रप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2007 का जजमेंट है, जिसने ये जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं सारे समराइज कर दिए थे। ये मैं बता देता हूँ, अगर आपको ज़्यादा जजमेंट्स नहीं पढ़ने, एक ही जजमेंट पढ़ना चाहते हैं सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखने के लिए, कोट करने के लिए, देखिए पढ़ना तो सब पड़ेगा, लेकिन अगर आपको
प्रिंसिपल समराइज करने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ प्रिंसिपल्स कौन से जजमेंट में समराइज थे. यू कैन ऑलवेज कोट इट. The appellate court has full power to review, reappreciate और consider evidence upon which the order of acquittal is founded. ये चंद्रप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में हैंडल हुआ था. फिर सेकंड प्रिंसिपल जो उन्होंने समराइज किया था आफ्टर रेफरिंग टू द कैटेना ऑफ केस लॉ दैट CRPC कोई लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ एन appellate court on the evidence before it. It can reach its own conclusion on the question of fact or of law. Various expressions such as substantial, compelling reasons, good and sufficient grounds, very strong circumstances, distorted conclusion, glaring mistakes are not intended to curtail the exercise of the extensive power of the appellate court in an appeal against an acquittal. Such phraseologies are more in a nature of flourishes of languages to emphasize the reluctance of an appellate court to interfere with the acquittal than to curtail the power of the court to review the evidence and come to its own conclusion. Supreme Court ने clarify किया है ये जो स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंसेस सब्सटेंशियल रीजन है ना, ये हम सिर्फ एम्फोसिस के लिए बताते हैं कि आप जनरली ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स को से इंटरफेयर करने के लिए रिलक्टेंट रहें. डू नॉट ऑर्डिनरली इंटरफेयर विद इट. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई पावर्स पे लिमिटेशन है. जस्ट बी रिलक्टेंट. सो इट इज अकिन टू अ प्रिंसिपल ऑफ अ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्सरसाइज ऑफ पावर बट नॉट ऑन द पावर इटसेल्फ. ये जो रिस्ट्रेंट है ये बस इस बात पे है कि जनरली आप मत करिएगा जब तक आपको कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ना लगे. पावर पे कोई लिमिटेशन नहीं है. पावर की एक्सरसाइज के लिए कुछ वो एक तरीके से रिस्ट्रेंट है कि जनरली आप इन चीज़ों से इंटरफेयर ना करें जनरली. लेकिन ऑन द पावर इटसेल्फ देयर इज नॉट अ रिस्ट्रेंट. ये कुछ जनरल कंसिडरेशंस हैं जो एक्सरसाइज ऑफ पावर को रेगुलेट करते हैं. सो प्रॉपर टर्म विल बी दैट इट इज akin to the regulation of power, not restraint of power. Fourth is an appellate court, however, must bear in mind in the case of acquittal there is double presumption in the favor of the accused, और वो strengthened हो जाता है. और वही बात reiterate की. सेकेंड प्रिंसिपल क्या है इसी की जो केस में हेल्ड हुआ था फोर्थ पॉइंट पे कि the accused having secured his acquittal should not be made to re-suffer the criminal proceedings again. ठीक है. Fifth is, if two conclusions can be based on the evidence of record, then the appellate court should not disturb the finding of acquittal. दो व्यू पॉसिबल हैं in the case of appeal against the acquittal. तो आप बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग से. यू विल टेक द व्यू ऑफ acquittal ओनली. ठीक है. फिर कई केसेस में सेम चीज़ रिटरेट ही होती जा रही है. सो आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम, बट रिसेंट वाला एक डिसीजन भी बता देता हूँ. वो कौन सा है? स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस शेराराम एलियास विष्णु दत्ता. ये 2012 में रिपोर्ट हुआ था. नेक्स्ट इन लाइन ऑफ द केसेस में जिसमें ये प्रिंसिपल जो मैंने अभी तक आपको बताया किस में रिटरेट हुए, गोविंद राजू एलियास गोविंदा वर्सेस स्टेट ऑफ श्रीरामपुरा 15 मार्च 2015 को भी सेम पॉइंट डिसाइड हुआ. सो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखिएगा. अब आपको कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बताता हूँ. ये आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे पर ये आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए एसेंशियल है. वैसे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए सब एसेंशियल है. लॉ में प्रैक्टिस और इन सब में कोई डिफरेंस नहीं होता क्योंकि ये जो जितनी भी चीज़ें केस लॉ से आ रही हैं इसका मतलब है ये इंसिडेंट्स हुए थे. तो यही प्रैक्टिकल नॉलेज है. When you have the knowledge of the case law, you have the knowledge of practice. ये जान लीजिए केस लॉ की नॉलेज ही नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस कही जाती है. तो क्या अगर मान लीजिए गलती से किसी एडवोकेट ने अपील पे जिस दिन हियरिंग होनी थी उस दिन गलत डेट रिकॉर्ड कर ली, तो क्या उसकी फिर जब हियरिंग हुई तो कोर्ट ने पाया कि काउंसिल प्रेजेंट नहीं था, तो क्या ऐसे केस में अपील अगर डिसमिस हो जाती है ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ द काउंसिल कि उसने रॉन्ग डेट गलती से रिकॉर्ड कर ली क्योंकि रॉन्ग डेट कॉज लिस्ट में ही गलत आई थी, तो क्या अपील को रिवर्स किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि काउंसिल आया ही नहीं था? सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के फैक्ट्स में ऐसा ही हुआ था कि कॉज लिस्ट में गलत डेट आ गई थी, एडवोकेट ने भी वो गलत डेट रिकॉर्ड कर ली, फिर हाई कोर्ट में जब हियरिंग हुई तो वो था ही नहीं. तो ऐसे केस में क्या हुआ
जो हाई कोर्ट था उसने अक्विटल, क्या कहते हैं, अक्विटल का ऑर्डर पास कर दिया सीधे और डिसमिस कर दिया केस। मतलब वो था कि लोअर कोर्ट ने भी अक्विटल दिया था, हाई कोर्ट जो था उसने भी इंटरफेयर नहीं किया, इन अ सेंस डिसमिस दी अपील। तो सुप्रीम कोर्ट जो था उसने ऑर्डर जो ऑर्डर ऑफ अक्विटल था उसको सेट असाइड कर दिया और रिमिटेड द मैटर फॉर फ्रेश कंसिडरेशन इन अ गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है कि एब्सेंस कि इन द एब्सेंस ऑफ द काउंसिल you can generally reopen the proceedings if it was a bona fide mistake। तो प्राइमरली पोजीशन ध्यान में रखिएगा कि चाहे ऐसा हो कि जो रॉन्ग डेट का ऑर्डर हुआ था वो उस टाइम पे हुआ हो कि आप अपील फ्रॉम कन्विक्शन कर रहे हैं, अपील फ्रॉम अक्विटल कर रहे हैं, तो उस केस में भी अगर आप हाई कोर्ट में अगर जाते हैं और कॉज लिस्ट में गलत डेट आती है और आप गलत डेट रिकॉर्ड कर लेते हैं और आपकी एब्सेंस की वजह से अपील डिसमिस हो जाती है या अपील में कुछ भी ऐसा हो जाता है जो आपको प्रेजुडिस करता है, देन इन दोज केस यू कैन यू कैन हैव द मैटर बी कंसिडर्ड अगेन ऑन फ्रेश कंसिडरेशंस। नेतराज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में क्या हुआ था कि यही जो रॉन्ग कॉस्ट लिस्ट वाला मैटर था, इसमें मिस्टेक ऑफ डेट हो गई। ये अक्सर हो जाता है, ये अक्सर कोर्ट्स में हो जाता है, खासतौर से अपीलेट कोर्ट्स में। तो हुआ क्या कि हाई कोर्ट ने देखा कि काउंसिल आया नहीं है अक्यूज्ड का, तो उसने क्या किया, सारा एविडेंस ऑन रिकॉर्ड देखा, हियरिंग की और उसने अक्विटल को जो है कन्विक्शन बना दिया और अपील को क्या कहते हैं डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो ऐसे केस में जो नेतराज सिंह जो थे वो भाई उनका काउंसिल पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। नेतराज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का फैक्ट बता रहा हूँ, और दोनों व्यू ध्यान में रखिएगा क्योंकि अगर वो अक्विटल के लिए पॉसिबल है तो इन केस ऑफ कन्विक्शन के लिए भी पॉसिबल है, वाइस वर्सा इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ काउंसिल। तो इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में अपनी पूरी कहानी बताई कि यार कॉज लिस्ट में वो गलत हो गया था माय लॉर्ड, एंड आई वाज अनेबल टू बी प्रेजेंट ऑन द सेम डेट, एंड बिकॉज ऑफ माय डिफॉल्ट इन अपीयरेंस द हाई कोर्ट एक्चुअली what it did in the present case was reverse the order of acquittal and made it conviction only on the ground that I was not present, and when I was not present it reappreciated the entire matter. The Supreme Court, what it did in Netraj Singh was that it remanded the case back to the High Court and said reconsider it on fresh consideration after hearing the counsel, क्योंकि जो रॉन्ग डेट थी वो एक बोनाफाइड मिस्टेक थी, वो हो जाता है। तो ऐसे केस में ज़बरदस्ती पेनलाइज नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, जनरली जो लॉयर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, जुडिशियल एस्पायरेंट्स के लिए उतना नहीं है। तो रिफ्यूज़ल टू ग्रांट लीव, अगर मान लीजिए कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो समैरली ग्रांट ऑफ लीव टू अपील को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो कोर्ट ने बोला है कि आपको रीज़न ज़रूर रिकॉर्ड करने होंगे, चाहे आप कोई भी कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, मैजिस्ट्रेट हो, कोर्ट ऑफ सेशन, इट डजंट मैटर, यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस फॉर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ लीव, बी इट यू अ कोर्ट ऑफ सेशन, बी इट यू हाई कोर्ट, इवन द सुप्रीम कोर्ट तक अपने रीजंस रिकॉर्ड करता है। जब सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड करता है तो बाकी कोर्ट को भी करना चाहिए। द रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव शुड बी अ स्पीकिंग ऑर्डर। तो एक सवाल उठता है कि मान लीजिए किसी अक्यूज ने अपील नहीं की, मान लीजिए एक केस में 6 अक्यूज थे और उन 6 में से एक ने अपील की और सब पे जो लाइबिलिटी थी क्राइम की वो बराबर से थी, सबके ग्राउंड्स जो थे वो बराबर थे, किसी के भी ग्राउंड्स ऊपर नीचे नहीं थे। ऑल ऑफ देम वर इक्वली गिल्टी, सेम फैक्ट्स, कुछ डिफरेंस नहीं, सेम एविडेंस में सबका कन्विक्शन, दे वर जॉइंटली ट्राइड एंड जॉइंटली कन्विक्टेड। तो क्या अगर उनमें से एक अक्यूज्ड अपील करता है और उसको एक बेनिफिट मिल जाता है अक्विटल का अपील करने पे, तो क्या वो बेनिफिट उनको एक्सटेंड किया जा सकता है जिन्होंने अपील नहीं की है? देन द आंसर इज यस,
It was held in Rajaram versus State of Madhya Pradesh. Supreme Court said that the benefit of conversion of sentence to all the accused from under section 302 of the IPC to 304, including a non-appealing accused, can be given to them. इस केस में क्या हुआ था, रिडक्शन ऑफ सेंटेंस हुआ था. मैंने एक्विटल वाला एग्जाम्पल लिया, वो थोड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल था, लेकिन ऑन अ गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स ऐसा हो सकता है. अगर सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पे एक का एक्विटल हो गया, या मान लीजिए प्राइम अक्यूज्ड का, प्राइम कंस्पिरेटर का एक्विटल हो गया, तो फिर जब प्राइम कंस्पिरेटर एक्विट हो गया तो बाकी कंस्पिरेटर्स को भी एक्विट करना पड़ जाएगा. तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर सारा एविडेंस, सारे फैक्ट सबके लिए सेम है. लेकिन अगर सबकी लाइबिलिटीज़ अलग अलग हैं, कोई प्राइम है कोई छोटा है, तो फिर वो डिपेंड करेगा. मान लीजिए छोटे अक्यूज्ड का अगर एक्विटल हो गया क्योंकि उसके खिलाफ उतना एविडेंस नहीं था, इट डजेंट मीन कि प्राइम अक्यूज्ड का भी एक्विटल हो जाएगा इन दी अपेलेट प्रोसीडिंग्स. लेकिन अगर प्राइम अक्यूज्ड का एक्विटल हो गया और वही उसी की लाइबिलिटी की वजह से बाकी लोग लाइबल थे, देन इन दोज केसेस उनको भी आपको एक्विट करना पड़ जाएगा जो बाकी के अक्यूज्ड हैं. सेम प्रिंसिपल होता है रिडक्शन ऑफ सेंटेंस में. प्रिंसिपल ये नहीं है कि रिडक्शन ऑफ सेंटेंस में होगा या एक्विटल में होगा. प्रिंसिपल ये है कि अगर मान लीजिए अपील पे सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पे कोई बेनिफिट मिल जाता है अपील का, दैट बेनिफिट कैन बी एक्सटेंडेड टू द नॉन अपीलिंग अक्यूज्ड एज वेल. ठीक है, लेकिन हाँ, इसको ये सिंपली ऐसे मत मान लीजिएगा कि जनरली एक को अक्यूज्ड का हो गया तो बाकियों को देना ही पड़ जाएगा, ऐसा बेनिफिट. ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है. एंड जनरली द रूल इज वेयर द फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस आर द सेम, हर केस में एक जैसे हैं. मान लीजिए 6 लोगों ने कंस्पिरेसी की, चार्जशीट फाइल होती है, उसमें ए प्राइम कंस्पिरेटर था, सबको कन्विक्ट कर दिया जाता है. एक्विटल का एग्जाम्पल ही लूँगा, सबको कन्विक्ट कर दिया जाता है. अपील पे जो प्राइम अक्यूज्ड है ए, वो अपील करता है. जो अपेलेट कोर्ट है वो एविडेंस पे पाता है कि जो ए है, ए ने कंस्पिरेसी कमिट की ही नहीं थी. ऑन दैट ग्राउंड जो अपेलेट कोर्ट है वो ए को अक्विट कर देता है. तो देन बिकॉज क्योंकि ए प्राइम कंस्पिरेटर था, उसी के बेसिस पे ये माना जा रहा था कि बाकी लोगों ने कंस्पिरेसी की है. जब वही एक्विट हो गया तो बाकी लोगों को रोप इन करने का कोई मतलब नहीं बनता. तो उनके लिए भी ये बेनिफिट एक्सटेंड किया जा सकता है, इवन दो दे हैव नॉट डायरेक्टली अपील्ड. वैसे ही अगर किसी का सेंटेंस है 302 पे लगा है, वो अपील करता है, कोर्ट पाता है कि नहीं ये मर्डर, ये क्या कहते हैं, मर्डर नहीं था, ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर थी, और ऐसे में सेंटेंस रिड्यूस कर देता है. तो यही बेनिफिट नॉन अपीलिंग अक्यूज्ड पे भी जा सकता है अगर उनके फैक्टर सर्कमस्टेंसेस सेम है. लेकिन अब मैं इसको पलट देता हूँ. अब मान लीजिए आपको मैं ऐसा पॉइंट कोई पैरिटी ऑफ बेल के भी टाइम पे बता चुका हूँ, बट आई डाइग्रेस. वापस पॉइंट पे आता हूँ कि अगर मान लीजिए इन अ गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स एक प्राइम अक्यूज्ड है, एक माइनर अक्यूज्ड है, और थर्ड पर्सन है जिसको सिर्फ इस बात पे रोप इन किया गया है कि ही असिस्टेड इन डिस्पोजल ऑफ एविडेंस. ठीक है, 201 का चार्ज लगा था उस पर, और मर्डर का चार्ज ऐसा सच नहीं लगा था उस पर. बट उनको सेम केस में जॉइंटली ट्राई करके 223 के प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी को ध्यान में रखते हुए उनका जॉइंट ट्रायल हुआ, जॉइंट लाइबिलिटी पाई गई, एंड देन दे वर कन्विक्टेड. तो अब अगर ये जो थर्ड अक्यूज था, मान लीजिए सी, जो कहता है कि 201 मेरे पे नहीं अप्लाई होता है, मैंने कोई डिस्पोजल ऑफ एविडेंस या कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस नहीं किया, तो मुझे इसके लिए गलत पनिश किया गया, तो अपेलेट कोर्ट में अपील फाइल करता है. अपेलेट कोर्ट रिकॉर्ड देखता है और पाता है कि नहीं, ये बात सही है कि जो एविडेंस जो इस थर्ड अक्यूज के खिलाफ है एज फार एज 201 वॉज कंसर्न, वो एकदम भी मटीरियल नहीं था, ना उसकी मेंसरिया थी, ना वो स्पॉट पे प्रेजेंट था, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो. वो अपेलेट कोर्ट फाउंड करता है कि ट्रायल कोर्ट का जो परसेप्शन था एज रिगार्ड्स टू थर्ड अक्यूज वो एकदम गलत था, परवर्स था, और वो क्विट कर देता है. तो प्राइम अक्यूज्ड को बेनिफिट नहीं मिल सकता, बाकी के अक्यूज्ड को बेनिफिट नहीं मिल सकता जिनको मर्डर में कन्विक्ट किया गया है, क्योंकि उनके फैक्टर सर्कमस्टेंसेस अलग हैं. हो सकता है फैक्टर सर्कमस्टेंसेस में एक वो जो प्राइम अक्यूज था उसके बेसिस पे एक खून से सना हुआ चाकू मिला. हो सकता है उसने बॉडी की शिनाख्त करवाई, उसने वो देखा कि हाँ, उसने कन्फेस किया कोर्ट के सामने कि मैंने ही मर्डर किया, एसेट्रा एसेट्रा.
तो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस तो एकदम अलग हो जाएंगे ना, ड्यू टू रिकवरी मेमो, नेचर ऑफ एविडेंस, कॉल डिटेल रिपोर्ट्स एंड सेवरल अदर थिंग्स जो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस में आती हैं, जिसको एग्जॉस्टिवली ले डाउन किया ही नहीं जा सकता है. सो इन दोज सिचुएशंस व्हाट विल हैपन? In those situations, because there is not a parity of the fact and circumstances, and because there is not a parity of evidence, the benefit that was given in an appeal to one accused will not extend to the other accused. ये दूसरा सिचुएशन है जहाँ पे पैरिटी नहीं है. जहाँ पे पैरिटी है वहाँ पे बेनिफिट एक्सटेंड किया जा सकता है टू द नॉन अपीलिंग अक्यूज्ड. तो देखिए, हर जनरल प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन होता है. उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा करिए, ठीक है. सो नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट इन लाइन क्या है. हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए एपेलेट कोर्ट को, वही जो अभी मैंने इलस्ट्रेशंस आपको जो दिए प्राइम अक्यूज वाले इन सब में, कि एपेलेट कोर्ट को एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अक्यूज्ड जनरली अपना राइट टू अपील गिव अप करता नहीं, और अगर वो कर रहा है तो क्यों कर रहा है? कभी कभी गरीबी की वजह से हो जाता है, तो ये जेन्युइन ग्राउंड है. लेकिन अगर आपके पास पैसा है और उसके बाद भी आप अपील नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कोर्ट कहीं ना कहीं ये भी समझ सकता है कि आप जानते हैं कि आप कॉन्शियसनेस में गिल्टी हैं, है ना. तो ये भी सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो ये भी फैक्टर सर्कमस्टेंसेस का मैटर है कि वैलिड रीजंस हो सकते हैं फॉर नॉन अपीलिंग, लैक ऑफ फाइनेंसेस, एब्सेंस ऑफ अ पर्सन टू परसू रेमेडी, या प्रॉपर असिस्टेंस जेल में नहीं मिली, या लॉयर नहीं मिला. दे कैन बी मैरिड ऑफ रीजंस. बट सारी फैसिलिटी अवेलेबल होने के बाद भी इफ़ यू डोंट अपील, तो ये एक सर्कमस्टेंस हो सकता है कि मे बी यू आर गिल्टी. हो सकता है ये भी ग्राउंड कंसिडर हो जाए. ये साहदेवन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में बता रहा हूँ क्या हुआ था. सो दैट इज़ मेजॉरिटी इट. अब मैं सेक्शन के बाकी पार्ट्स पढ़ सकता हूँ. ये सारे प्रिंसिपल्स अपील के ख़त्म हो गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं है. कि जनरली देखिए, अपील समैरली डिसमिस की जा सकती है अंडर 384. अगर कोर्ट को लगता है देयर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरफियरिंग, देन इट में डिसमिस द अपील समैरली. तो अगर ये सेक्शन 384 मैंने सीधे पढ़ लिया, अभी 378 पे आना है. 378 हो गया हमारा. 383 में प्रोसीजर बताता है कि व्हेन द अपेलेंट इज़ इन जेल, अगर अपेलेंट जेल में है तो वो अपना पिटिशन फॉर अपील किसके थ्रू प्रेजेंट करेगा, ठीक है. तो कॉपीज, जो सारी जितनी भी कॉपीज़ हैं अपनी पिटिशन की, वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल को दे देगा. वो पिटिशन जो है वो अपेलेट कोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल. समरी डिसमिसल ऑफ अपील कब होता है 384 में? कि अगर कोई पर्सन, अगर कोर्ट को लगता है कि देयर इज नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरफेरेंस, तो इट में डिसमिस दी अपील समैरली, तुरंत कर सकता है. एक चीज़ का इसके 2-3 प्रोविजन है, बहुत ही माइनर हैं, वो इतने सब्सटैंशियल नहीं, कोई पूछता भी नहीं है, पर जानकारी के लिए एसेंशियल है, क्योंकि एक रीडिंग कर रहे हैं तो कर ही लीजिए. कि इन एन अपील अगेंस्ट ए कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, जो सेक्शन 379 में है, कि वेयर द हाई कोर्ट अपील पे ऑर्डर ऑफ अक्विटल को रिवर्स कर देता है और वो उसको लाइफ सेंटेंस में बना देता है, या सेंटेंस हिम टू फॉर डेथ, या 10 साल से ऊपर की सज़ा देता है, तो ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. किन ग्राउंड्स पे? जब ऑर्डर ऑफ अक्विटल से अपील गई है, मतलब द अक्यूज्ड वाज अक्विटेड इन द ट्रायल कोर्ट, और तब अगर हायर, मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन में मर्डर केस था, कोर्ट ऑफ सेशन ने अक्विट कर दिया, और फिर हाई कोर्ट में अपील गई, और हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको सजाए मौत दे दी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, या 10 साल के ऊपर की सज़ा दे दी, तो अक्यूज्ड में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. 379 याद रखिएगा. स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस क्या है 380 में? कि नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है, वो पूरे चैप्टर पे अप्लाई करता है, पूरे चैप्टर को ओवरराइड कर रहा है ये प्रोविजन. कि व्हेन मोर पर्सन्स देन वन आर कन्विक्टेड इन वन ट्रायल एंड एन अपीलेबल जजमेंट और ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी one of such person, all or any of person convicted at such trial shall have a right to appeal. अगर एक के पास right of appeal हो जाता है तो बाकी भी अपील कर सकते हैं उसी के केस में. और दूसरा, अगर एक को बेनिफिट मिल जाता है तो वो
उसको उनको भी बाकी को बेनिफिट मिल सकता है अगर फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस उनके लिए भी सेम है। अपील कोर्ट ऑफ सेशन में कैसे सुनी जाएगी? या तो सेशन जज सुनेगा या तो एडिशनल सेशन जज सुनेगा, 381 में बताया है। लेकिन अगर सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट के कन्विक्शन से हियरिंग हो रही है तो असिस्टेंट सेशन जज या सीजेएम भी उसको सुन सकता है फाइल, लेकिन वो कोर्ट ऑफ सेशन में ही होगी अपील। वो अलग बात है, वो ट्रांसफ़र कर दे सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट की हियरिंग के लिए कि सीजेएम या असिस्टेंट सेशन जज सुन ले। सो जनरल पिटिशन ऑफ अपील जो होगा वो राइटिंग में होगा और अपेलेंट उसे प्रेजेंट करेगा, जो प्लीडर है अपेलेंट का वो प्रेजेंट करेगा और वो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट के साथ होगा। और अगर वो जेल में है तो मैंने अभी प्रोसीजर बता दिया, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल के थ्रू प्रेजेंट करेगा। समरी डिसमिसल हो सकता है, लेकिन नो अपील 384 में लिखा है, प्रोवाइजो में लिखा है कि नो अपील प्रेजेंटेड इन द 382 शैल बी डिसमिस्ड अनलेस द अपेलेंट और हिज प्लीडर हैज अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर टू बी हर्ड इन द सपोर्ट ऑफ द सेम। तो हियरिंग की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। इस पूरे पैराग्राफ को जो प्रोवाइजो के एम है, अब उसको सीधे कह सकते हैं द पिटिशन इज प्रेजेंटेड अंडर 382 द रिक्वायरमेंट ऑफ हियरिंग बाय द अपेलेट कोर्ट इज मैंडेटरी। ठीक है, फिर बी क्या है? नो अपील प्रेजेंटेड अंडर 383 शैल बी डिसमिस्ड एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग द अपेलेंट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द सपोर्ट ऑफ द सेम। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का मतलब समझते हैं? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपकी कोर्ट ने आपको बोला कि हाँ आपको सुन लेते हैं, फिर जैसे ही आपने अपना आर्ग्यूमेंट शुरू किया कोर्ट ने बोल दिया बस सुन लिया, अब नहीं सुनना। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग का मतलब ये होता है कि आपको अपना पूरा पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। I should, as a judge, I should allow you sufficient time and sufficient opportunity to present your cause before me reasonably. Alright, इसका मतलब ये नहीं कि आपने जैसे ही आर्ग्यूमेंट शुरू किया मैंने कहा हाँ ठीक है सुन लिया, अब नहीं सुनना। This cannot be done. An opportunity must be given to present your cause in a reasonable manner. तो जब आप जेल से अपील करते हैं तो ऐसे केस में कोर्ट तब इंटरफेयर कर सकता है कि अक्यूज जब कस्टडी में है, अपील उसको लगता है फ्रिवलेस है या इनकन्वीनियंस उसकी वजह से होगी, तो ऐसे केस में वो चाहे इन द केस इफ द अपेलेट कोर्ट कंसिडर्स, तब वो हो सकता है अक्यूज को पर्सनली ना हेयर करे। ऑलराइट, सी नो अपील प्रेजेंटेड अंडर 383 शैल बी डिसमिस्ड समरली until the period allowed for preferring the appeal has expired. अब subsection 2 क्या कहता है? Before dismissing an appeal under this section, the court may call for the record of the case. अब उसमें reasons to record होंगे, other than that is a very procedural provision. मेन अब सेक्शन पे आते हैं सीधे, जो है 386। देखिए पढ़ना आपको 385 और 384 भी है, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये माइनर प्रोविजंस हैं जो सिंगल रीडिंग में आपको समझ में आ जाते हैं, इस पर कोई नुआंस है नहीं। पर 386 इंपॉर्टेंट है आपको बताने के लिए, तो आई वांट टू जस्ट कम टू द मीट एंड बोन्स ऑफ द सेक्शन। 386 सेज पावर ऑफ द अपेलेट कोर्ट आफ्टर परयूसिंग सच रिकॉर्ड। ये पावर्स जानना ज़रूरी है कि अपेलेट कोर्ट की शक्तियाँ हैं क्या। आफ्टर परयूजिंग मतलब पूरे रिकॉर्ड को देखने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, एंड हेयरिंग द अपेलेंट एंड प्लीडर, रिकॉर्ड के बाद हेयरिंग भी होनी है अपेलेंट की भी और या उसके प्लीडर की, एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन तीनों की। आफ्टर परयूजिंग द रिकॉर्ड अपेलेंट और हिज प्लीडर और द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ ही अपीयर्स, एंड इन द केस ऑफ एन अपील अंडर 377 एंड 378, 377 में क्या है? एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस को लेके अपील। 378 में क्या है? ऑर्डर ऑफ अपील where appellate proceedings when the order is when you are appealing against the order of acquittal, वो 378 में। The accused if he appears, the appellate court may if it considers no sufficient grounds for interfering dismiss the appeal, or may अब देखिएगा in an appeal from an order of acquittal। तो अपील इन द केस ऑफ ऑर्डर फॉर acquittal में क्या कर सकता है? रिवर्स कर सकता है उस ऑर्डर को, डायरेक्ट दैट द फर्दर इंक्वायरी बी मेड और द अक्यूज्ड बी रीट्राइड, मतलब रीट्रायल का ऑर्डर दे सकता है, और बी कमिटेड फॉर ट्रायल, कमिटेड वेयर सेशंस कोर्ट, और एज द केस में बी फाइंड हिम गिल्टी
एंड पास अ सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। तो रीट्रायल का ऑर्डर दे सकता है, रिवर्स कर सकता है उसे, ऑर्डर ऑफ अक्विटल को रिवर्स कर सकता है, इंक्वायरी का ऑर्डर दे सकता है, कमिट कर सकता है ट्रायल को, या ही में appellate court itself find him guilty and pass the sentence on him according to law। खुद ही गिल्टी एविडेंस को रीअप्रिशिएट करके जान ले कि हाँ इसे कन्विक्शन का बन रहा है, तो सीधे उसे कन्विक्ट कर दे और उस पर सेंटेंस भी पास कर दे, या वो डिसमिस कर सकता है। तो जो डिसमिसल है ना वो जनरल क्लॉज है, तो उसको ध्यान में रखिएगा, ये सारे जितने भी प्रोवाइजोज हैं उस पर अप्लाई करेगा। फिर क्लॉज बी में क्या कहता है, अपील जब कन्विक्शन से हो रही है, तो अपील जब कन्विक्शन होगी तो अपेलेंट ही अपील करेगा। इन एन अपील फ्रॉम कन्विक्शन, यहाँ पे अपेलेट कोर्ट क्या कर सकता है, रिवर्स द फाइंडिंग एंड सेंटेंस एंड अक्विट और डिस्चार्ज द अक्यूज। फाइंडिंग और सेंटेंस को रिवर्स कर सकता है, तो या तो अक्यूज को अक्विट भी कर सकता है और डिस्चार्ज भी कर सकता है, और ऑर्डर हिम टू बी रीट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। रीट्रायल का भी ऑर्डर दे सकता है इन अपील ऑफ इन द केस ऑफ कन्विक्शन of the competent jurisdiction subordinate to such appellate court or committed for trial। तो जब अपील कन्विक्शन से है तो ये सारी चीज़ें कर सकता है। फिर सेकंड क्लॉज में बताता है कि और क्या क्या कर सकता है, ऑल्टर द फाइंडिंग मेंटेनिंग द सेंटेंस। हो सकता है appellate कोर्ट क्या करे कि जो सेंटेंस दिया गया है, मान लीजिए 10 साल का दिया गया है, और फाइंडिंग ऑफ फैक्ट मान लीजिए ये है हमारे पर्पस के लिए कि अक्यूज ने एक पर्टिकुलर क्राइम एक पर्टिकुलर मैनर में किया, ये फाइंडिंग थी। तो ऐसे केस में अपीलेट कोर्ट एविडेंस को रीअप्रिशिएट करके ये देख सकता है कि हाँ ये सेंटेंस तो जो है वो तो ठीक लगा है, लेकिन जो फाइंडिंग है कि अक्यूज ने मान लीजिए स्टैब, मान लीजिए चाकू से मारा था, इसको ये चेंज, इसको ऑल्टर कर सकता है इन अ गिवन सेट ऑफ फैक्ट। उसको लगता है कि नहीं चाकू से नहीं मारा था, उसने एक्चुअली he used a screwdriver to stab the person। screwdriver से उसने उसको stab किया था, he punctured his eyes, lungs, liver, whatever। तो वो stab wounds नहीं थे, वो screwdriver के through wounds थे, which is of course more brutal in the sense। तो यहाँ पे finding alter हो गई है, पर sentence को नहीं छुआ गया है। finding can be altered। और ये भी हो सकता है कि finding मान लीजिए मर्डर केस में है, उसको हो सकता है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बना दे, लेकिन सेंटेंस हो सकता है उस मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया हो, लेकिन जो केस था वो केस इतना ग्रेव था कि कल्पेबल होमिसाइड अंडर 304 उसमें जो हाईएस्ट पॉसिबल सेंटेंस है इन द कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो हो सकता है अपीलेट कोर्ट को लगे कि नहीं लाइफ इम्प्रिजनमेंट ठीक था इस केस में, तो वो फाइंडिंग ऑल्टर कर दे, 302 के कन्विक्शन से 304 में कन्वर्ट कर दे, लेकिन सेंटेंस को ना छुए, ये कर सकता है। तो ये है ऑल्टर द फाइंडिंग एंड मेंटेनिंग द सेंटेंस का मतलब। तो मैंने आपको दोनों इलस्ट्रेशन दे दिए, एक आपके फाइंडिंग ऑफ फैक्ट का और एक ये वाला दूसरा वाला कि मर्डर चार्जेस को भी अल्टर कर सकता है। ये ऑल्ट की ये नहीं, जो चार्ज को अल्टर करना लिटरल सेंस में मत लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ चार्ज को अल्टर करना इन अ सेंस कि जो कन्विक्शन पाया था कोर्ट ने मर्डर केस में, उसने पाया कि वो मर्डर केस का नहीं था, वो एक्चुअली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो गया। वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर किन केस में होगी, स्टे ट्यून्ड फॉर आईपीसी, विल हैव फन देयर। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, उसमें तो बहुत मज़ा आएगा जब आप इससे इक्वेट करके आईपीसी में बात करेंगे, इट विल बी रियली फन। फिर सब क्लॉज 3 में विद और विदाउट ऑल्टरिंग द फाइंडिंग ऑल्टर द नेचर और द एक्सटेंट or the nature and extent of the sentence but not as to enhance the same। तो देखिए ये कह रहा है क्लॉज 3 कि आप सेंटेंस को इनहेंस नहीं कर सकते, पर आप क्या कर सकते हैं, आप सेंटेंस का नेचर जो है वो ऑल्टर कर सकते हैं। हो सकता है आप फाइंडिंग ऑल्टर करें या ना करें, या आप दोनों ही कोर्स अडॉप्ट करें। हो सकता है आप सेंटेंस को ऑल्टर करें या ना करें, पर आप अपील जब फ्रॉम अ कन्विक्शन है, व्हेन यू आर अपीलिंग फ्रॉम कन्विक्शन, देन यू विल नॉट इनहेंस द सेम, उसको इनहेंस नहीं करेंगे। बट ऑफ कोर्स इट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 377। जब 377 में अपील फॉर एनहांसमेंट है तब वो आप एनहांस कर सकते हैं, वो क्लॉज सी में आता है। क्लॉज सी कहता है जब अपील एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस के लिए, अब ये देखिए सेपरेट ग्राउंड है,
डी क्या कहता है, जब अपील फ्रॉम कन्विक्शन है तो आप सेंटेंस को एनहेंस नहीं करेंगे, यू विल नॉट एनहेंस द सेंटेंस। ये बात अपने दिमाग में एकदम स्टोर करके रख लीजिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्योंकि क्लॉज 3 कहता है यू कैन नॉट एनहेंस द सेंटेंस। क्लॉज सी कहता है कि जब अपील फॉर एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस होगी यू कैन द एनहेंस इट। तो फर्स्ट क्लॉज कहता है क्लॉज सी का कि रिवर्स द फाइंडिंग एंड सेंटेंस एंड अक्विट द अक्यूज्ड और डिस्चार्ज द अक्यूज्ड और ऑर्डर हिम टू बी रिट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ कंप्यूटर जुरिसडिक्शन। तो रिवर्सिंग द फाइंडिंग एंड सेंटेंस, अक्विटिंग और डिस्चार्जिंग द अक्यूज और रिट्रायल का ऑर्डर दिया जा सकता है। ऑल्टर द फाइंडिंग मेंटेनिंग द सेंटेंस, ये मैंने अभी आपको समझा दिया। अब थर्ड क्लॉज क्या कहता है, विद और विदाउट ऑल्टरिंग द फाइंडिंग ऑल्टर द नेचर ऑफ द सेंटेंस सो एज टू एनहांस और रिड्यूस द सेम। आप देखिए एनहांस के साथ रिड्यूस भी जुड़ गया, तो आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं इन द अपील फॉर एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस, बट यू कैन नॉट डू द सेम थिंग, you can only reduce it, you cannot enhance it under appeal from conviction। ये बात याद रखिएगा, you cannot enhance the sentence, but in an appeal for enhancement of sentence you can enhance or reduce it as the case may be। D कहता है, यही एक nuance था इसमें जो आपको बताना था। D in an appeal from an order from an acquittal, alter or reverse such order। E कहता है make any amendment or any consequential or incidental order as may be just or proper। तो कभी कभी रिकॉर्ड्स को ऑल्टर करने होते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर भी पास करना होता है। कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर क्या हो सकता है कि बेल बॉन्ड शैल स्टैंड कैंसल्ड या स्टैंड डिस्चार्ज, या अक्यूज विल बी अक्यूज शैल सरेंडर बिफोर दिस कोर्ट एसेट्रा एसेट्रा। ये कॉन्सिक्वेंशियल और इंसिडेंटल ऑर्डर होते हैं डिपेंडिंग ऑन फाइंडिंग क्या हुई है, एक्विटल की हुई है या कन्विक्शन की हुई है, सेंटेंस एनहांस और रिड्यूस हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। Provided that a sentence shall not be enhanced unless the accused has been given an opportunity of showing cause against the enhancement। ये बात याद रखिएगा, इसको आप रिलेट कर लीजिए क्लॉज सी से कि opportunity of hearing जरूर देनी है, क्योंकि accused prejudice हो जाएगा इस बात से। तो accused को मौका देना चाहिए कि वो बोले कि नहीं प्लीज़ सेंटेंस कम कर दीजिए। तो क्लॉज सी के प्रोवाइजो हैं ये। क्लॉज सी का प्रोवाइजो भी बता रहा है कि व्हेन योर सेंटेंस एनहांस होने वाला है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द एनहांसमेंट देनी चाहिए अक्यूज्ड को। और दूसरी बात, एपेलेट कोर्ट शैल नॉट इन्फ्लिक्ट अ ग्रेटर पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस विच इन इट्स ओपिनियन अक्यूज्ड हैज कमिटेड देन माइट हैव इन्फ्लिक्टेड फॉर दैट ऑफेंस बाय द कोर्ट पासिंग द ऑर्डर और सेंटेंस अंडर द अपील। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका क्या मतलब है कि एपेलेट कोर्ट वैसा उससे बड़ा सेंटेंस नहीं पास करेगा जितना वो सबऑर्डिनेट जो लोअर कोर्ट उस ऑफेंस के लिए इन्फ्लिक्ट करता। अब देखिए रॉबरी का केस ट्राई हो रहा है, ऐसे इसको इमेजिन करिए। अब देखिए फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस का मैटर है, ये कंसेप्ट है, ये जो प्रोवाइजो इट्स अ कंसेप्ट, ये कंसेप्ट अप्लाई करेगा फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस में। अब देखिए, अब मान लीजिए ये सेक्शन क्यों राइड कर रहा है पावर को, रिस्ट्रेन कर रहा है। वो ये कह रहा है कि रॉबरी में मान लीजिए अक्विटल हुआ, रॉबरी के केस में अक्विटल हुआ, या लेट अस सपोज कन्विक्शन हो गया, जो भी मान लीजिए, अपील गई हाई कोर्ट है। तो ऐसे केस में नहीं, अपील हाई कोर्ट नहीं गई, अपील गई कोर्ट ऑफ सेशन में। अब ऐसे केस में एपेलेट कोर्ट एक बात देखता है कि हाँ मुझे लगता है ये जो ऑर्डर फॉर एक्विटल था ये गलत था। अभी बाकी के प्रोविजन भूल जाइए, बस ये प्रोवाइजो समझिए। प्रोवाइजो क्या है कि ये जो ऑर्डर ऑफ एक्विटल था ये गलत था। मान लीजिए मैजिस्ट्रेट ने रॉबरी के केस में ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास किया, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उसने ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास किया। अब जो जज है, जज कंसर्न जो एपेलेट कोर्ट का है, जो कोर्ट ऑफ सेशन मान लेते हैं हमारे अपने एग्जाम्पल के लिए, कोर्ट ऑफ सेशन होगा, तो वो रॉबरी के केस में देखता है कि येस आई मस्ट रिकॉर्ड अ फाइंडिंग ऑफ कन्विक्शन बिकॉज जो ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग थी वो परवर्स थी, इट वॉज पैल्पेबली रॉन्ग एंड अनजस्ट। उसके बाद वो सोचता है कि मैं कितनी सज़ा दूँ, तो ये जो प्रोवाइजो है उसकी सज़ा को क्वालिफाई करता है। सेशंस जज तो मौत तक की सज़ा दे सकता है, लेकिन रॉबरी पे आपको पता है जो मैक्सिमम पनिशमेंट है ऑन अ रॉबरी सिंप्लिसिटर दैट इज 10 years। और अगर रॉबरी हाईवे पे कमिट कर ली गई है ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज देन इट्स 14 years। तो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर रॉबरी पे सेंटेंस देता तो मैक्सिमम 3 साल तक का दे सकता था, है कि नहीं।
तो यही वो बात कह रहा है। तो अगर सेशन जज भी अगर वो पाता है कि नहीं इस केस में कन्विक्शन होना चाहिए और मुझे इसको सेंटेंस पास करना चाहिए, तो लेजिस्लेचर बता रहा है कि आप उतना ही सेंटेंस पास करेंगे जितना वो लोअर कोर्ट पास कर सकता था। क्योंकि अगर मैजिस्ट्रेट ट्राई कर रहा है जिससे आपने अपील सुनी है, तो वो तो मैक्सिमम 3 साल पास करता था। आप तो ठहरे सेशन जज, आप तो 10 का 10 भी पूरा दे सकते हो। अगर हाईवे रॉबरी है, अगर हाईवे रॉबरी है ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, तो आप 14 साल का पूरा ही पीरियड दे सकते हो। तो वो कहता है ये इतना मत करिएगा, आप 3 साल की सजा दीजिएगा क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने उसे ट्राई किया था। अपील सुन रहे हैं आप। यही केस अगर सेशन जज ओरिजिनली ट्राई करता रॉबरी, इवन दो नॉट ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय हिम, लेकिन मान लीजिए अगर ट्राई करता, तो ऐसे केस में वो तब पास कर सकता था एज अ ट्रायल कोर्ट, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस कितना पनिशमेंट देना चाहिए। लेकिन चूंकि इसको मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने ट्राई किया था, और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मैक्सिमम 3 साल तक का दे सकता है रॉबरी पे, बिकॉज वो उसकी पावर रिस्ट्रेंट है, वो 3 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट नहीं दे सकता ना सिंगल ऑफेंस। तो ऐसे केस में एपेलेट कोर्ट पे एक राइडर लगाया लेजिस्लेशन है, यू विल नॉट इन्फ्लिक्ट अ ग्रेटर पनिशमेंट, जितना कि जो उससे ज़्यादा की जो कोर्ट जिसने ऑर्डर पास किया है या सेंटेंस पास किया है वो इन्फ्लिक्ट कर सकता था। तो मैजिस्ट्रेट के केस में कितना है मैक्सिमम 3 साल, तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी सेशन जज पे कि वो 3 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता। दैट ये एक नुआंस है इसमें, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नुआंस। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर ये जो पावर ऑफ सेंटेंसिंग है ना मैजिस्ट्रेट की, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं आप लोग को एक बार फिर बता देता हूँ कि सेक्शन 29 में देखिएगा मैक्सिमम 3 साल है, और इसको यू रीड इट विथ सेक्शन 31 एज वेल। वो कहता है कि इन अ सिंगल केस आप जो उसका जो मेन प्रोवाइजो है ना, उसके प्रोवाइजो पे आना है कि एग्रीगेट पनिशमेंट जब अगर किसी केस में देता है, तो वो जितना एम्पावर्ड है इन्फ्लिक्ट करने से, जितना भी सेंटेंस इन्फ्लिक्ट कर सकता है उससे ट्वाइस से ज़्यादा नहीं दे सकता। मतलब एक केस में हो सकता है रॉबरी हो, कई ऑफेंसेस हो, तो ये मैजिस्ट्रेट के पास ड्यू टू द प्रोवाइजो ऑफ अंडर सेक्शन 31 ये प्रोसीडिंग अवेलेबल है कि वो 6 साल तक का भी एक गिवन केस पे दे दे। बट इन अ सिंगल ऑफेंस, मान लीजिए रॉबरी एक केस में सिर्फ एक ऑफेंस है रॉबरी, तो रॉबरी पे वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं दे सकता। अब लेकिन एक केस में रॉबरी के अलावा भी और भी बहुत सारे चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस में ऑफेंसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे बन सकते हैं। तो अगर वो बहुत सारे हैं और फिर पता चलता है मैजिस्ट्रेट को लगता है कि टोटल में अगर मैंने सब में 1-1 साल भी कन्विक्शन किया, 10 ऑफेंसेस हैं, तो हो सकता है 10 साल हो जाए। तो सेक्शन 31 बोलता है कि नहीं, आप उतना नहीं कर सकते, आप एग्रीगेट पनिशमेंट जो भी देंगे वो ट्वाइस दी अमाउंट ऑफ पनिशमेंट जितना भी आप इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं उसको एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। एग्रीगेट पनिशमेंट ऑन अ गिवन केस। 29 जो क्वालिफिकेशन बताता है वो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन अ सिंगल ऑफेंस की बात करता है, ठीक है। वो बता नहीं रहा है कि सिंगल ऑफेंस है या नहीं, बट वो सिंगल ऑफेंस पे ही अप्लाई करता है। 31 क्या कहता है? 31 ये कहता है कि जब एग्रीगेट आप पनिश कर रहे हैं, एग्रीगेट मतलब क्या, सम टोटल ऑफ दी ऑल ऑफेंसेस जब आप दे रहे हैं, तो वो आपकी पावर टू इन्फ्लिक्ट सेंटेंस से दुगने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इसमें प्रॉपर कोर्स तो यही होता है कि वो प्रोसीडिंग सुपीरियर कोर्ट को दे दे 325 में या 323 में, अगर उसे लगता है ज़्यादा सीवियर सेंटेंस इम्पोज करना है। लेकिन अगर वो खुद ही ट्राई करके इम्पोज करना चाहता है तो एग्रीगेट सेंटेंसेस जो केस में दे रहा है इट शुड नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ सेंटेंस। तो 29 को ऑलवेज रीड इट विथ सेक्शन 31। और 31 में एक और चीज़ याद रखिएगा कि कॉन्जिक्यूटिव और कॉन्करेंट सेंटेंसेस भी होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं? जो एक के बाद एक चलते हैं, कि पहले मैजिस्ट्रेट कह सकता है कि पहले मान लीजिए आपका थेफ्ट का पनिशमेंट एक्सपायर कर जाएगा तब रॉबरी का पनिशमेंट शुरू होगा। कॉन्करेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं कि रॉबरी और थेफ्ट के पनिशमेंट एक साथ चलेंगे। ऑलराइट, मान लीजिए कोर्ट ने बोला कि पहले आप 3 साल, सेशन जज ने बोला पहले 3 साल आप थेफ्ट का पनिशमेंट झेलेंगे, फिर 7 साल आप रॉबरी का पनिशमेंट झेलेंगे, ठीक है। तो ऐसे में टोटल कितना हो गया? अगर ये कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस हैं 10 साल हुए 2 ऑफेंसेस पे, तो ही हैज़ टू अंडरगो 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट कन्विक्ट को। लेकिन अगर दूसरे केस में अगर सेशन जज इसी केस में बोल दे कि यू आर कन्विक्टेड फॉर 3 years फॉर थेफ्ट एंड 7 years फॉर रॉबरी बट बोथ सेंटेंसेस शैल रन कॉन्करेंटली, तो कॉन्करेंट चलेंगे तो मतलब रॉबरी और थेफ्ट का पनिशमेंट एक साथ चलेगा।
तो 3 साल जब थेफ्ट के ख़त्म होंगे तो 3 साल रॉबरी के भी ख़त्म हो गए, फिर बचे कितने 4 साल, तो 4 साल और उसे करना होगा और 7 साल के अंदर ही उसका पीरियड ख़त्म हो जाएगा सेंटेंस का और वो जेल से बाहर हो जाएगा। पहले केस में जब कंसिक्यूटिवली चल लेता तो 10 साल जाना था उसे जेल में, लेकिन कॉन्करेंटली चल रहे हैं तो इसी इलस्ट्रेशन पे उसे 7 साल जेल सेंटेंस देना पड़ेगा। तो दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। आई होप कि 386 का नुआंस आपको प्रॉपरली समझ में आ गया हो। तो ध्यान रखिएगा जितना भी आप चीज़ें अपील पे लेंगे उसमें आपको रीजंस हमेशा रिकॉर्ड करने हैं। अब इसमें जो मेन सेक्शंस बाकी आते हैं वो है 392, 389 हम लोग बेल वाला प्रोविज़न था वो हमने बेल पे ही कर लिया था। अब हम आते हैं 392 पे कि तब क्या होगा व्हेन जजेस ऑफ द अपील आर इक्वली डिवाइडेड। जब जजेस ऑफ द अपील आर इक्वली डिवाइडेड तो इन दैट केस द ओपिनियन वो दूसरी बेंच को दे दिया जाएगा एंड वो जज जो होगा जिस बेंच पे ऐसा ऑर्डर दिया गया कि यू डिसाइड दिस प्रोसीजर कि इस पे आपका क्या ओपिनियन है। जनरली प्रैक्टिस में अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट रूल्स यहाँ पे कम से कम 3 जजेस की बेंच होती है, लेकिन ये 392 उस प्रोसीजर में जहाँ पे 2 जजेस की बेंच सुन रही है और दोनों डिवाइडेड हैं तो एक थर्ड जज को प्रोसीडिंग ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जो अपना ओपिनियन उस पर डिलीवर किएगा और फिर जजमेंट और ऑर्डर उसी ओपिनियन को फॉलो करेगा। ठीक है। सो एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा 391 में अपीलेट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट इट टू बी टेकन। तो अपील में जो अपीलेट कोर्ट है अगर उसको लगता है एडिशनल एविडेंस लेना नेसेसरी है तो अपने रीजंस रिकॉर्ड करके चाहे तो खुद एविडेंस ले ले या डायरेक्ट इट टू बी टेकन बाय द मैजिस्ट्रेट और वेयर द अपीलेट कोर्ट इज द हाई कोर्ट डायरेक्ट टू बी टेकन बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और द मैजिस्ट्रेट। और जैसे ही जब वो कलेक्ट होगा तो उसको सर्टिफाई किया जाएगा और ये आपको अपीलेट कोर्ट को वापस सबमिट कर दिया जाएगा डिपेंडिंग किसने कलेक्ट किया है, चाहे वो कोर्ट ऑफ सेशन हो या मैजिस्ट्रेट हो। ये शैल सर्टिफाई सच एविडेंस एंड देन सबमिटेड टू द अपीलेट कोर्ट। जब एविडेंस कलेक्ट हो रहा है तो 273 की रिक्वायरमेंट हमेशा सेटिस्फाई होगी। वो क्या है, अक्यूज और प्लीडर शैल हैव द राइट टू बी प्रेजेंट व्हेन द एडिशनल एविडेंस इज टेकन। यही सब क्लॉज 3 में भी है। जब ट्रायल पे उसके सामने रिकॉर्ड करना है तो अपील में क्यों नहीं उसके सामने रिकॉर्ड करेंगे, ऑफ कोर्स उसके सामने ही एडिशनल एविडेंस लिया जाएगा। ऑलराइट, सेम प्रोविजन फिर अप्लाई होते हैं आपके चैप्टर 23 के एज इफ इट वर एन इंक्वायरी की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा टेकिंग ऑफ एविडेंस। अब आ जाते हैं फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट्स एंड ऑर्डर ऑन अपील 393। तो जजमेंट एंड ऑर्डर पास्ड बाय एन अपीलेट कोर्ट अंडर द अपील शैल बी फाइनल एक्सेप्ट in the case provided under 377 and 378 और subsection 4 of 384 और chapter 30। chapter 30 क्या है, reference and revision। तो जनरली माना जाता है कि जजमेंट और ऑर्डर जो अपील पे है वो फाइनल है एक्सेप्ट इन द केस इन 377, 378 या 384 subsection 4 या chapter 30 of the CRPC, provided that notwithstanding the final disposal of the appeal against the conviction in any case, the appellate court may hear and dispose of the case on merits. An appeal against the acquittal under section 378 arising out of same case or an appeal against the enhancement of sentence under 377 arising out of same case। तो बेसिकली ये सेक्शन ये कह रहा है कि नॉटविथस्टैंडिंग की हो सकता है आपने पूरी अपील डिस्पोज ऑफ कर दी हो, अगर उसी केस से इवन दो यू हैव डिस्पोज्ड ऑफ द अपील ऑन मेरिट, अगर उसी केस से अपील अगेंस्ट एन एक्विटल निकल रहा है सेम केस पे, यू कैन हेयर इट। एन अपील फॉर एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस निकल रहा है उसी केस पे, देन यू कैन हेयर इट। ठीक है, उस पर बाद नहीं अप्लाई होगा। अबेटमेंट ऑफ अपील्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अबेटमेंट का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। जनरली पार्लेंस में सिंपल लीगल पार्लेंस में बता रहा है, इट इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो अपील का अबेट हो जाएंगे। एवरी अपील अंडर 377 एंड 378 शैल अबेट ऑन द डेथ ऑफ द अक्यूज्ड, जब अक्यूज्ड मर जाता है।
or every other appeal under this chapter except an appeal for the sentence of fine। देखिए सेंटेंस ऑफ फाइन इस पर नहीं आता, क्योंकि अगर वो मर भी गया तो ऐसे केस में क्या होगा, जो उसका एस्टेट है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, इट शैल बी लायबल टू पे द फाइन, और उसके लीगल एयर से भी फाइन रिकवर करवा सकते हैं अगर उन्होंने वो प्रॉपर्टी इनहेरिट की है। वैसे जयललिता की जब मौत हुई थी तो जो सेंटेंस ऑफ फाइन था वो नहीं गया था, सेंटेंस ऑफ फाइन तब भी इम्पोज हुआ था, और जो उसकी पोस्ट गार्डन की प्रॉपर्टी थी वो नीलाम हुई थी, फिर उसकी प्रॉपर्टी फाइन रिकवर करने के लिए जितना भी अमाउंट था वो सारा नीलाम हुआ था, वो रिकवर भी किया गया था। 60 करोड़, आई थिंक 100 करोड़ का फ़ाइन था, और 100 करोड़ के फ़ाइन में आई थिंक 65 करोड़ में तो उनका पोस्ट गार्डन का बंगलो ही बिका है। खैर, सो every other appeal under this chapter except an appeal from sentence shall finally abate on the death of the appellant, provided that where appeal is against a conviction and a sentence of death or imprisonment, the appellant dies during the pendency of appeal। तो देखिए, जब कोई conviction है या sentence of death या imprisonment दिया गया है और appellant इस केस में convict हुआ, तो वो जब अपील करता है अपने ऊपर इम्पोज सेंटेंस के खिलाफ, और during the time which the appeal is pending he dies, in that case he is dead, then उसके मरने के within 30 days के अंदर appellate कोर्ट में उसके रिलेटिव्स भी अपील फाइल कर सकते हैं इस परमिशन के लिए टू कंटिन्यू द अपील। और अगर लीव टू अपील appellate कोर्ट ग्रांट कर देता है उस रिलेटिव्स को कि यू कैन कंटिन्यू द अपील ऑन द डेड appellant's behalf, तो दे विल बी authorized to continue the appeal, but leave of the appellate court is to be obtained। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए 30 दिन के अंदर नहीं आए तो क्या होगा, उनको सफिशिएंट कॉज दिखाना पड़ेगा कि आप पहले क्यों नहीं प्रेजेंट हुए। तो सफिशिएंट कॉज दिखा देते हैं एज लेट डाउन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, तो उसको एप्लीकेशन वो एकदम कंसिडर कर सकता है, लेकिन सफिशिएंट कॉज दिखाना होगा बिकॉज इट्स एन एप्लीकेशन। अगर सफिशिएंट कॉज वो नहीं दिखा पाते इन दो सिचुएशंस, उनको लीव नहीं मिलेगी टू कंटिन्यू द अपील। अब इसमें कौन आते हैं, नियर रिलेटिव्स, पेरेंट्स, स्पाउस, लीनियर डिसेंडेंट्स, ब्रदर और सिस्टर। तो अब आपके अंदर एक सवाल आएगा कि यार जब कन्विक्ट मर गया तो फिर क्या फ़ायदा अपील को कंटिन्यू करने से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि सिविल कॉन्सिक्वेंस होते हैं क्रिमिनल लॉ के कन्विक्शन में। अगर मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट करप्शन के चार्जेस पे इम्प्रिजेंड है तो उसकी ग्रेट्युटी चली गई, उसकी जितने भी एफडी थी वो गवर्नमेंट सीज कर लेगी, जितना उसने क्या कहते हैं प्रोसिक्यूशन में खर्च, अगर उसने उसको डिफेंड करने में खर्चा किया, कुछ भी करने में खर्चा किया, तो उसको सीज कर लेती गवर्नमेंट। पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, तो अगर ऐसा अपेलेंट मर गया तो उसकी फैमिली को पेंशनरी बेनिफिट्स मिल जाते 50% हाफ करके उनको फॉरवर्ड हो जाता है। ये स्कीम होती है पेंशनरी लॉ में इंडिया के, अगर आप गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। तो इतने फॉल आउट हैं, तो उनका भी तो इंटरेस्ट है इसमें जुड़ा हुआ, तो इसलिए वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं कि वो जो सिविल लॉ का स्टिग्मा है अगर उनके सर पे भी आ रहा है, मान लीजिए पेंशनरी बेनिफिट्स या ग्रेट्युटी सीज कर लिया, बाकी चीज़ें नहीं मिली या एफडी ले ली, क्योंकि कई गवर्नमेंट रूल्स में, इनफैक्ट पंजाब पुलिस रूल्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये रूल है, आपके सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स में भी ऐसा है, आपका ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में भी, डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स में अगर आप कन्विक्ट हो गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई रूल्स ऐसे फ्रेम किए हुए हैं जहाँ पे वो ऐसा कर सकती है। तो क्रिमिनल लॉ के कन्विक्शन में बड़ा फॉल आउट होते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर इस बात पे आपको कन्विक्ट कर दिया गया है कि यू हैव कॉज्ड मर्डर ऑफ योर फादर और मदर, और ऐसे केस में द पर्सन जिसको कन्विक्ट किया गया है वो कहता है कि आई हैव नॉट कमिटेड सच अ क्राइम, पर उसको क्योंकि कन्विक्शन हो गया तो उसने अपील फाइल की, तो हिंदू लॉ के हिसाब से he'll be excluded from the succession, he will not be considered for succession, उसके पास प्रॉपर्टी कभी आ ही नहीं सकती। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसके जो एयर थे, जो उस पर्सन के एयर थे, मान लीजिए उसकी वाइफ थी, उसका चाइल्ड था, तो वो भी एक्सक्लूड हो जाएंगे क्योंकि दे क्लेम थ्रू हिम, उसके थ्रू क्लेम करते हैं। तो ये सिविल लॉ का कॉन्सिक्वेंस है जिसको अवॉइड करने के लिए जो रिलेटिव्स हैं दे कैन कंटिन्यू द अपील ऑन द बिहाफ ऑफ अपेलेंट, और वो सारे वो ग्राउंड्स ले सकते हैं जो अपेलेंट लेता अगर वो जिंदा होता।
तो दीज आर वन ऑफ फ्यू इलस्ट्रेशन, इसमें बहुत सारे माइल्ड इलस्ट्रेशन है, अगर आपको और जानना हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बट इट फॉल्स विद इन द डोमेन ऑफ सिविल लॉ, तभी वो स्टिग्मा हटाने के लिए ग्राउंड है। और जहाँ पे मैंने आपको बात की थी कि क्या सेंटेंस ऑफ फाइन अवेट करता है, तो आपको पता है कि वो नहीं करता है। अभी मैंने बता दिया हरनाम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इस पर अथॉरिटी है, और ये व्यू है अभी ये 2020 में रिटेरेट हुआ, रमेशन डेड रिप्रेजेंटेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव गिरिजा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, क्रिमिनल अपील नंबर 77 ऑफ 2020। इसमें यही कंटेंशन सेम लिया गया था कि डिसीज जो है उसको मेजर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन भी इम्पोज करने को बोला गया था। अब चूंकि वो मर गया तो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नहीं गया, पर चूंकि एक ही सेंटेंस में फाइन और इम्प्रिजनमेंट था तो फाइन भी अबेट कर जाएगा या नहीं। कोर्ट ने बोला फाइन नहीं अबेट करेगा, फाइन इम्पोज चाहे एक साथ अलग से हो, सिर्फ सिंगुलरली इम्पोज हो, या कंजंक्शन विद अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन वुड बी एन अपील फ्रॉम अ सेंटेंस ऑफ फाइन, वो नहीं अबेट करेगा। सेंटेंस ऑफ फाइन के लिए आप अपील भी कर सकते हैं, बिकॉज इट डज नॉट अबेट एट ऑल, क्योंकि वो एस्टेट पे अटैक करता है। और इसीलिए फॉर द सेम रीज़न यू हैव सीन कि ये जो आपका रिलेटिव्स हैं ये भी कंटिन्यू कर सकते हैं अपील, क्योंकि अगर मान लीजिए फाइन एस्टेट पे लग गया और वो एस्टेट लीगल रिप्रेजेंटेटिव इनहेरिट करने वाले हैं, तो उनका तो एस्टेट से ही रिकवर करवाया जाएगा ना, तो दे हैव अ कॉज ऑफ एक्शन। तो इसीलिए वो ये अपील कंटिन्यू कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द डेड अपेलेंट। अब उसमें ये नहीं मैटर करता कि वो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ सर्टेन टर्म के सेंटेंस के साथ एक कंपोजिट सेंटेंस था या सिंगुलर सेंटेंस था। ऑलराइट, सो इट इज़ द ओनली नुआंस। और इसके साथ आपका अपील का जितने भी नुआंस टॉपिक थे अपील के वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। नाउ नथिंग एल्स इज़ लेफ्ट, अब रिविजन बचा है, और दैट इज़ इट प्राइमरली। सो आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।